So welcome all. Now, people will keep on joining. I'll just walk you through now. Yeah, last time whoever attended or it is available on the YouTube, you can actually go and check the sessions what we have done. Now, primarily this is I want to show what are the benefits or how do you invest in a swing trading. Like I have taken a FNO session also, and I have taken a swing trading earlier as well. I keep on taking these sessions for the understanding of members who can invest in a stock market. Okay. Now, anybody has any idea how many of investing regularly or maybe trading in the equity market? You can put in on chat or you can open the mic and say whichever is comfortable to you. How many are actively investing in stock market or they are invested? I'm sure everybody's portfolio may be in the red, but what is investment time? How many years you are investing into? Investing some do intraday. Okay. My portfolio is in green. Very nice, sir. Very nice. So it is investing because you do intraday. Maybe that is the reason. Okay. Since how long you are investing, sir? If you can tell me. Since 5 years. Very nice. Okay. Long term investor हो या short term investor? 5 years में you are investing or you are doing mostly intraday? Anybody else who's investing? I just write you on chat, so you have to put open everyone. Long term is sometimes intraday. Okay, so very nice. Okay. I'm just putting hi to everyone. You can write on the chat. Okay. So personally, if you ask my style, I never do intraday because intraday you have to put a lot of time, efforts, and energy, and it is not worth according to me. Okay. Intraday, a lot of people do, but I don't advise or I don't advocate or even I don't do it. Okay. Majorly, I look for a swing trade. Now, if you ask me what is swing trade is basically buying a stock for a particular period with some target in mind and you sell it at some particular target. Now, I'll show you some of the stock which I have listed here. I flagged it also, although it is a paid version, but I'll just walk you through how to do it. Now, these are the companies who are listed. These are the top 200 companies according to the market cap, right? Now, those who attended, I'll just brief you about this, how I select the companies. Now, there are a couple of tools. I'll just walk you through how to use it, how to find the good stocks to invest, and then what are the targets you should look for, and how you can look for the target. And if it goes down, what exactly you should do. Now, anybody who is trading here uses stop loss for their trading. Obviously, intraday जो sir कर रहे हैं, obviously he must be using the stop loss. Anybody else is using the stop loss for their trading? कोई भी यूज कर रहा है ट्रेडिंग के लिए? स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो आप? ठीक है या आई कैन अंडरस्टैंड जो भी इंट्राडे कर रहा है वो तो स्टॉप लॉस यूज करेगा, उसके बिना तो उनका काम नहीं होगा बिकॉज दे हैव टू एनी विच वेज कट द पोजीशन. But otherwise, those who are investing, they do a momentum trading or swing trading or whichever way they want. Anybody using the stop loss for their position? I don't use stop loss. Okay. There is no stop loss in my system. Okay. There is a major reason because when I'm investing in cash market, okay, before entering, we just look for a good company, fundamentals, and if you're staying with a good company, there is no need of putting a stop loss. In fact, some of the times you should buy more when it goes down. Usually, it is not a trading style. People advocate either you go to channel, either you go to YouTube channel. They don't use this pattern, but I usually use this pattern because when I'm buying something at say 100 and if I'm getting it 90 or I'm getting it 80, it is much better because it was worth for me to buy it 100 and within 1 or 2 or 3 months, if I'm getting at this rate, I'm finding it more attractive to buy.
Now there are certain strategy. I'll tell you how to use it, what to use it. If you find suitable to you, you can also use it. It is for me, it is a more profitable. For you also, you can think of this. If you think it is applicable, you can use it. Now, I divide the stock into three major parts, which normally everybody does. Okay, which is large cap, mid cap, and small cap. Okay. Now, how I allocate money, or how I advise everybody to allocate the money is, you just not put 5% of any stock. You should not more than 5% in any stock. Here, not more than 3%. Here, not more than 1.5 to 2% in any stock. Now, this is something small cap. Now, why this is? This is low risk and low return. Here it is medium risk and medium return. And here it is high risk and high return. Now, because this is very small cap, the capital size is very small, it is very easy for operator or anybody to move the prices, and it is maybe not related to fundamentals. Sometimes fundamentals से वो align नहीं करते. Many good companies sometimes are beaten very very harsh, and sometimes there is some companies not doing anything. They are giving 1,000, 10,000, 15,000% return. Okay, so it is multi-fold they are giving return and company is not doing it. So it is basically purely operator driven, demand supply. So you should always, whenever you go this, okay, when you put in this large cap, you should find the reason to invest. Why I should invest this? And here you should find the reason not to invest. Now, why we say not to invest? Suppose you find 100 stocks here, you will find minimum to minimum 90 stock which is investable in nature, because the business is too good, business is very good, they are doing very nice. Although the size is very big, so movement is very limited, but your money security is very good here. Here, you may get very fast 50, 60, 100% return, or maybe 200% return very fast, but then security of money is very very limited. So you have to be very choosy when you select this kind of, and here you should always have a mixed view. Okay, find, what I always do is, there are two major parts. Okay, either any of this, there are major parts. Now if I ask you विच इज द बेस्ट कंपनी, यू थिंक इसका फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो कभी भी। आप कोई भी एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी का नाम ले सकते हो, विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल। वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, यू टेल मी कि विच आर द कंपनी यू शुड नेवर थिंक ऑफ कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना ही नहीं पड़े। एनी वन और टू नेम्स, एनी सेक्टर यू वांट, एनीथिंग यू लाइक, विच एवर यू फाइंड comfortable, which most of the people who are related to equity market, they know. You can write any name, whichever you like it, or you can open the mic and tell me. L&T, Reliance, HDFC, very good. Anything else? Whichever. Now it is, even it is beaten down right now, it is fine. Everybody start writing at least. If you can't open the mic, you can write it. Because participation होगा तो ही समझ में आएगा कि who is doing what and how we are involved. Otherwise, एक बाजू खाना बन रहा होगा और एक बाजू आप यहाँ पे मोबाइल पे चला रहे हो, it will not use. Tell me. Dimple ma'am, Kirti ma'am, Menon sir, Nishant, Tata Motor, Tata Power, Adani Power. Right? This is all power industry. Good. Automobiles. ठीक है. Nobody written IT. ठीक है. आप IT लिस्ट में रख देना. The good days are coming. This is my view. ठीक है. I may be completely 100% wrong. तो IT का अच्छे दिन आने वाले हैं. ठीक है. So I'll just show you some of the good stocks. Okay. Good stock in the sense ke, which are renowned one. I'm not saying they're investable as of now, but I'm just giving you some idea what exactly you can do and how exactly. There is one indicator which I put in here, which is called as envelope. Okay, it is majorly based on the your simple moving average, right? Now I'll just give you brief about simple moving average, but I'll just put Reliance. Okay, it's the number one company as a market cap. Okay, whether it is investable right now or not is a different story right now. ठीक है ना?
So if you see here, this is Reliance chart. Okay, I have some marking done. I'll just remove all of them. ये मेरी पर्सनल मार्किंग है, मैंने रखा है. Now, last time also I've taken a Reliance, but I'll just give you a Reliance. If you see broadly, I'll just put it around. This is 5 years chart. If I'm seeing from here, it is almost 6 years chart from 2020 to 2026. Okay, this is the chart what you have, right? It's a daily chart. I usually prefer daily chart. Even if I want to go, I go to weekly chart and I go to monthly chart. Some of the time I check it very ITI VTF, वेरी गुड सर. ETF तो बहुत अच्छी चीज है करने के लिए, एंड इट इज यू गेट एवरेजिंग ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स. सो ETF इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एरिया टू इन्वेस्ट विदाउट पुटिंग एनी ब्रेन्स टू इट. आप निफ्टी ETF कर सकते हो, बैंक निफ्टी ETF कर सकते हो, IT ETF, मतलब द लॉट ऑफ ETFs अवेलेबल. ETF के बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑल्सो. सो दैट आई टेल यू, इफ यू वांट टू कवर मी, आई विल कवर दैट ऑल्सो. ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ ऑन द डायरेक्ट स्टॉक्स. Now, ये डायरेक्ट स्टॉक्स यहाँ पे जब आप ले रहे हो, तो इफ यू सी हियर, गुड पार्ट इज दैट लॉट ऑफ टाइम्स अवेलेबल. नाउ इफ आई रिमूव दिस, सपोज इफ आई रिमूव दिस, आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट एबल टू फाइंड कि ये क्या है, अच्छा है या बुरा है. सो बेसिकली देयर इज सम सिंपल सिस्टम बाय विच यू कैन फाइंड द गुड स्टॉक. अगर आप देखोगे, रिलायंस इज अ गुड स्टॉक, राइट? बट अगर इफ यू सी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, if I put it from this point to as on date, as on date, right? तो इन 2020 2024 डेज, बेसिकली आप अगर उसको डिवाइड करो तो इट विल बिकम 5 years. अगर आपने रिलायंस किसी टाइम पे लिया होता समवेयर अराउंड 2021, आई जस्ट सी व्हाट आर द डेट्स आई पुट इन. ठीक है, दिस इज डेट ऑन 3 सितंबर 2020 से लेके वी आर ऑन अप्रैल 26. सो प्रैक्टिकली 5.5 years, 5.5 years आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, इट इज गिवन ओनली 21% रिटर्न. Now, Reliance, fundamentally, there is nothing wrong with the company. Okay, that everybody will agree. फंडामेंटली आपको चेक करने की जरूरत है, ना ही हम इसको एवेल्यूएट करते, ना ही हमारी औकात है. ठीक है ना? इट इज बहुत बड़ी कंपनी है. बट सपोज यू इन्वेस्ट इन सम इवन स्मॉलर ड्यूरेशन, और मे बी आई टेक ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑल्सो. ठीक है, इफ यू टेक इट दिस लेवल, it has given you 60% return in 1.5 years, almost less than 1.5 years, but it has given 60% return in 1.5 years. Same stock. Only thing is when you buy and when you sell, it depends on this. Sometimes people say it's a very long term game. Okay, you should always, but then certain, if you do it intraday, not recommended, but sometimes they do it, or if you do small basis, small days or small time frame. Small time frame means it will maybe vary from 1 month to 1 year to 2 years. So it is not that कि very small, मतलब 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में. I usually don't trade on this particular days. Okay, मेरा होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है. ठीक है. So, but you should invest in such a way that you should expect a very good return. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला 170% रिटर्न इन 190 days, बेसिकली 6 months. ठीक है, ये वन ऑफ द केस होता है जहां पे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिटर्न वेयर मार्केट इज टू पैनिक. ये टाइम था आपका जब मार्केट का बॉटम बना था, विच इज 23rd of March, जब अपना लॉकडाउन अनाउंस हुआ था. ठीक है ना? दिस इज द डे व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड. ठीक है, आई शो यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट दिस थिंग ऑल्सो. देखो 23 ना, उस दिन उसने बॉटम बनाया था. इट इज मेड अ बॉटम ऑन द डे व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड. ठीक है, आपने बोला था अभी लॉकडाउन चालू हो गया, अभी तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. मार्केट इज मेड द बॉटम, एंड यू कैन टेक नोट डाउन द डेट, 23rd of March 2020, and you go on to 10 top stocks, or even Nifty, or a bank Nifty, or Sensex. Everybody has made the bottom on the same day when the lockdown was. So sometime you have to understand कि जब आपके पास न्यूज आता है, ठीक है, तो वो लास्ट लेग होता है बैड न्यूज का. और इवन फॉर गुड न्यूज, any news coming to you as a common people or to me, it is usually the last day or last leg
ऑफ द दैट पर्टिकुलर न्यूज, वो सब कुछ उसमें 95% डिस्काउंट हो चुका है, उसमें कुछ यूज बचा नहीं है, ठीक है। 95% हैज गिवन द दिस थिंग। आई जस्ट से रिसेंटली HDFC का न्यूज में आया था बात। HDFC हैज गिवन बैड न्यूज, ठीक है ना, आप उसको चेक करो। आपका न्यूज रिसेंटली आया है, राइट? आपका न्यूज बहुत जल्दी नहीं आया है, इट केम अराउंड समवेयर हियर, ठीक है, जब उसने रिजाइन किया, करेक्ट। बट इफ यू सी हियर, बिफोर दैट इट हैज ऑलरेडी गिवन अ डाउनफॉल, इवन नॉट हियर, इफ आई टेक फॉर हियर ऑल्सो, somewhere here it came. So it has already given 79% downturn. If I take a little far from here, in last 2 months or so, 2 or 3 months or 4 months, it has given already 20% fall. Now जब न्यूज एक्चुअली फ्लोट हुआ तो वहां से फिर बाद में खाली इतना ही आया, 8 to 10% मोर, ठीक है। जब वो न्यूज आया था, आई थिंक इट वाज अराउंड 820 और समथिंग था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन अगर 800 था, उससे बॉटम यहाँ से 730 के अराउंड कुछ बनाया, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज अ बॉटम राइट नाउ, ठीक है, लेकिन वो समवेयर यहाँ पे था उस टाइम पे बॉटम, क्योंकि उसका आई थिंक गैप डाउन हुआ था। आई जस्ट सी द गैप डाउन दिख ही जाएगा यहाँ पे, या ऑन दिस डे ब्रोक आउट, ठीक है, यहाँ पे न्यूज आया था इस जगह पे, ऑन दिस, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। सो व्हेन ही ब्रेक डाउन इट वाज 802, करेक्ट, जिस दिन वो डाउन हुआ था। इट हैज गॉन नॉट इवन 10% मोर, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी 21% करेक्ट हो चुका था इन लास्ट 3 to 4 months, ठीक है। एंड इफ यू से बिफोर दैट, इट वॉज कंटिन्यूसली आइदर कंसोलिडेटिंग और इट वॉज मूविंग अप। इफ यू सी हियर, या सी इन लास्ट 2 years it has given you 48% return, 50% return, मतलब 50% return in HDFC kind of a stock which is very large cap, one of the largest bank in the private sector, ठीक है। उसने आपको 50% का रिटर्न ऑलमोस्ट दिया था विद इन लेस देन 2 years, राइट। लेकिन उसी टाइम में इट हैज गिवन मोर देन 25%, 30% फॉल इन जस्ट 3 to 4 months। नाउ ऐसे नहीं कि ये फॉल पहले नहीं आया है, इफ यू सी दिस, नॉट बट नॉट दैट सीवियर, ठीक है। इनके लिए अगर 5, 10, 15% फॉल हो जाए, इट इज वेरी गुड टाइम टू बाई इन दिस स्टॉक्स, राइट। इफ यू सी हियर, अब देखो 15, 17% का फॉल हो जाए तो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक्स विच आर वेरी वेरी लार्ज इन नेचर, राइट। Now, if you take another, so one I've taken banking, one I've taken Reliance, which is petrochemical, and this one I take IT, TCS, and I'm going to take top companies. अब now recently it has given a fall, ठीक है। अगर if I ignore this fall, ठीक है, मैं अगर इसका fall ignore कर दूं, if I take it from last 4, 5 years, if I don't take this fall, and if I take it from here, suppose I invested somewhere at this point, I take it somewhere from here also. Okay, 2021 से. I'm not taking a lot bottom. Now I'm talking the top. मैं दोनों के एवरेज लेता हूँ तो somewhere here I have invested, right? And if you see here also at this point in time, ठीक है, which is almost 1370, basically 4.5 years, ठीक है। 4.5 years में इट इज नॉट गिवन 5 to 7% अभी तो चलो नेगेटिव है, ठीक है, इट इज स्टिल नेगेटिव। यहाँ से आप चेक करोगे तो -30% का रिटर्न है इन लास्ट 5 years, मोर देन 5, 6 years, राइट, 4 years और प्लस, ठीक है। सो उसमें नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। सिमिलरली यू टेक L&T, लार्सन, आई एम टेकिंग ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। इट इज गिवन अ जंप हियर, अच्छा खासा रैली दिया था उसने। आफ्टर दैट, सिंस लास्ट, यहाँ से जहाँ से रैली चालू हुई थी, इट इज गिवन कंसोलिडेटिंग का 42% रिटर्न है। एंड इफ यू सी फ्रॉम द बॉटम, from 2022 onward, it has given a good rally.
183% रिटर्न उसे दिया था एलएनटी ने, राइट। इट्स अ गुड, बट अभी रिसेंटली आप चेक करोगे, इट इज कंसोलिडेटिंग फेज। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे इट इज अ गुड कंसोलिडेशन फेज। 857 मतलब करीब करीब आप ये सोच सकते हो 2.5 years है इट इज कंसोलिडेटिंग। दिसंबर 2023 से अभी तक उसने 20% के रेंज में ही घूम रहा है मोटा मोटा। इट इज नॉट गिविंग टू मच रिटर्न। जब उसने रेंज दिया था 2022 में, एंड इवन आफ्टर कोविड इट इज गिवन अ गुड रिटर्न। कोविड के बाद भी आप देखोगे तो इट इज गिवन गुड रिटर्न, 220%। एंड हियर वी ऑलरेडी सीन दिस इज इट इज गिवन 207 अराउंड, मोटा मोटा 2 years, 1 year, मतलब 20 months, 22 months. Here it is given around 1.5 years में 156%। If I take the top also here, if I take the top 170% दिया था, लेकिन वो टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। तो सर्टेन टाइम पे एक बार वो चल जाता है, उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है काफी। ठीक है। एंड इन बिटवीन इट इज गिवन अ डाउनफॉल ऑल्सो, नॉट वेरी हाई, बट इफ यू सी दिस 28-30%। ठीक है। सो नाउ दे फॉल लेस एंड दे ग्रो मोर। ठीक है। नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी स्टॉक ये बता दो कि, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट ये बता दो कि आपको 2 साल में ऑलमोस्ट 80%, 90% या 100% का या उससे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दिया है, दिस इज वन पार्ट, इट इज ऑलमोस्ट 200% रिटर्न। मतलब आपका 100 रुपया 300 रुपया बन जाएगा, डबल नहीं, 300 रुपया विद इन 2 years। इफ यू गेट दिस, ठीक है, इट इज 100 अगेन 175% विद इन सेम 2 years, राइट। तो आपका राइट टाइम बाय करने का क्या है, वहां पे कैसे यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। नाउ इफ यू बाय दिस स्टॉक्स एट अ वेरी गुड प्राइस, अभी रिसेंटली इट हैज कम टू माई लेवल ऑफ बाइंग। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, राइट। इट इज ऑलरेडी मार्क, इफ यू सी समवेयर ना, इट इज ऑलरेडी मार्क फॉर सर्टन थिंग्स। Now there is one indicator what I use it, not to be used for every stock. There are certain selection stock I use it for. Okay, this stock will use. Now it is definitely work for the large cap. मतलब blindly use कर सकते हो large cap के लिए. There is no problem. Now I have given certain uh, colors to it. The black color is the median line. Now median line is a considered to be for the large cap. It is considered to be a very good price to buy in. Now it is a simple moving average. Simple moving average is a simple mathematics. If you don't understand, I'll just tell you. Suppose if I say simple moving average of 5 days, ठीक है, those who don't understand absolutely new है उसके लिए बता रहा हूँ। Suppose I have 100, 101, 98, 95 एंड 108। ये मेरा 5 दिन का क्लास है। इट इज डेली मूविंग एवरेज, क्लोजिंग है 5 दिन का, एंड यू मेक इट एवरेज। एवरेज आपका आया 100 एंड 100.5। ठीक है। जब नेक्स्ट दिन में ये 120 पे ओपन हुआ तो ये 100 क्रॉस हो जाता है, एंड 120 इज टेकन एज एवरेज, एंड 5 डेज से वापस डिवाइड करो। आई एम टेकिंग 5 days जस्ट टू शो इजीली, राइट। तो ये लास्ट के जो 5 ट्रेडिंग डेज है फ्रॉम टुडे, द प्रीवियस 5 डेज का वो एवरेज लेता है, एंड वो यहाँ पे कहता है। सो इफ यू गो दिस डे इट विल टेक हियर टू 5 days, दिस 200 डे मूव एवरेज आपका जो प्लॉट हो रहा है ये पॉइंट्स, ठीक है, ये इस पॉइंट से आगे का 200 डेज का मार्क कर रहा है। ये इस पॉइंट से आगे का 200 डेज, मतलब प्रीवियस पास्ट के 200 डेज मार्क करेगा, यहाँ से 200। सो दिस इज कीप ऑन प्लॉटिंग एवरी डे, एंड दिस इज हाउ इट इज फॉर्म। नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड लेवल to buy for the very large cap companies which are profitable. I'm sure I'm telling because I'll show some of the large cap which are not even profitable, लाइक स्विगी, जोमेटो, नाइका, जो अभी रिसेंटली सब आए हैं, पेटीएम, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। दे आर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो वो इन्वेस्ट है तो इन्वेस्टेबल अभी है नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइकिंग में भी है, बट आई डोंट फाइंड कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग वेरी लार्ज अमाउंट इन टू दिस ऑल दो इट्स अ लार्ज कैप। अगर मेरे को इन्वेस्ट करना, मेरा पोर्टफोलियो का 1 से 2% में अभी इन्वेस्ट करूंगा और छोड़ दूंगा उसको। ठीक है, बिकॉज इट नॉट, इट मे गिव वेरी वाइल्ड मूव्स विच इज पॉसिबल, जो लोगों के फेवरेट्स है, काफी मूव करते हैं। बट इफ यू सी दिस देर आर लॉट ऑफ गुड कंपनी, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है विच इज अवेलेबल। नाउ आई एम शोइंग यू दिस करंटली, यू कैन सी हियर। आप अगर पीछे जाओगे तो कितनी बार उसने, नाउ आई एम टेकिंग ओवर 2005 ऑनवर्ड्स, मतलब ये प्रैक्टिकली आपके पास 20 साल का चार्ट है, मोर देन 20 years।
And if you see here how many times and what time it has given, the time when it has gone below this green line, ठीक है ना, आप वो चेक कर सकते हो, बिलो दिस ग्रीन लाइन आपने कितने गया है। दिस इज फर्स्ट टाइम एंड सस्टेन बिलो, मतलब कभी तो टच होकर ऊपर चला गया। ये आपका टाइम है जब ये था सब प्राइम क्राइसिस, 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, ये था। सेकेंडली ये टाइम गया यहाँ पे, गया वापस वी शेप रिकवरी आ गई, राइट। तो 2011 में एक बार डाउन टर्न आया था। नाउ सिमिलरली टाइम मार्केट भी डाउन टर्न दिया होगा। मार्केट ने कितना डाउन टर्न दिया है वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी का उसको हमने 2013 में, सो 2 years, 1 2 3 4। So you see every 2 3 years you get this opportunity, but when you get this opportunity you can check for any stock whichever you want, and if you hold for certain reasonable time, एक आध साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, तो how much time you'll get? I am saying कि okay चलो मैंने बॉटम में नहीं बाई किया, आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट बॉट इन द बॉटम, मैंने यहाँ पे कहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, जब पैनिक बहुत था, ठीक है ना, आई होल्ड इट फॉर जस्ट रीजनेबल टाइम, बहुत ज्यादा नहीं, 100% रिटर्न, ठीक है, विद इन 330 डेज, एक साल में, ठीक है। यू टेक इट विच एवर यू वांट, ज्यादा बीटन डाउन है, होल्ड फॉर अ 1 year, लॉन्ग टर्म के लिए आप बोलोगे मैंने एकदम बॉटम में बाय नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या देखो, अगेन 50% रिटर्न, ठीक है, अगेन यू गॉट दिस। मैं एकदम टॉप तो ले रहा हूँ, बीच में कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम जस्ट टेकिंग 1 year होल्डिंग, या दिस इज 1 year, 343, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 year, ये आपका आया अराउंड 122% रिटर्न, ठीक है, अगेन नीचे आया 50% रिटर्न, ठीक है, अगेन नीचे आया, एंड दिस इज रैंडमली, यू कैन टेक मी एनीथिंग, आप मेरे को जो बता सकते हो मैं वो स्टॉक ले लूंगा, ठीक है, अगेन 70 80% रिटर्न। अब जस्ट यहाँ पे नीचे आया था, इट इज नॉट गिवन टू मच बट लेकिन जस्ट नीचे थोड़ा सा आया था, इन 1 year टाइम, 643, 1 year नहीं, 1 year पकड़ता हूँ, आई जस्ट पुट 1 year, या यहाँ पे 1 year में आपका अराउंड 70% रिटर्न है, ठीक है, जब क्योंकि मार्केट जब बुलिश में थी तो इट हैव गिवन लॉट ऑफ रिटर्न, मतलब ये 22 से 24 आफ्टर यूक्रेन वॉर, बिफोर यूक्रेन वॉर, तो उससे बहुत ज्यादा रिटर्न दिया था, उसके बाद भी 20 से 24 में मार्केट जबरदस्त चली थी, राइट। सो मार्केट इज ओवरऑल गिवन। नाउ ये जस्ट थोड़ा सा नीचे आया था, नाउ इट इज रिसेंटली, ये कब का था, 2 अप्रैल जब टैरिफ आया था इसका, करेक्ट, सो इट इज गिवन मी 1 मिनट, जस्ट गिव मिनट, हेलो। सॉरी, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक, एनी स्टॉक यू वांट मी टू सी ऑन दिस चार्ट, आप मेरे को बताओ, देन विल सी कि हाउ हिस्टोरिकली इफ यू टेक अ सेंसिबल डिसीजन, ओके, यू कैन अर्न वेरी गुड अमाउंट विच इज यूजुअली नॉट पॉसिबल इन सच लार्ज स्टॉक्स। ओके, इसका मैं अगर मार्केट कैप के वो दिखा दूं, आई जस्ट शो यू मार्केट कैप, दिस इज अनदर टूल, दिस टूल व्हाट आई एम यूजिंग इज अ ट्रेडिंग व्यू, आई एम श्योर यू ऑल मे बी नोइंग इट के ट्रेडिंग व्यू क्या टूल है। अगर नहीं है तो मैं आपका लिंक आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, आपको कुछ इशू है आप मेरे को पर्सनल में या तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो,
एक स्टॉक के आपका यहाँ पे स्किनर.इन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कितनी बड़ी कंपनी है, जो वॉट एवर यू टेकन लार्सन, ठीक है, 5.5 लाख करोड़ की कंपनी है ये, ऑलमोस्ट। बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। टू गिव एन आइडिया कि हाउ मच बिग दिस कंपनी इज, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ ये कितनी बड़ी कंपनी है, या कोई भी कंपनी उसके मार्केट कैप के हिसाब से आप कितना मार्केट के मतलब उसका साइज माना जाता है, उसके नंबर ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाई उसकी स्टॉक प्राइस, उसके जितने फ्लोटिंग शेयर्स है और जितने मार्केट में शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस होता है। इट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आप उसके अगर मैं यहाँ पे ये सिंपल चीजें मार दूं, और सेकेंडली ये मेरे ना ट्रेडिंग व्यू में जाओगे ना, आप यहाँ पे देखोगे जितने भी आप HID से फाइंड करोगे, ये मैंने स्ट्रीनर बना के रखे हैं। दिस इज जस्ट फॉर यूज फॉर एवरीबडी। ये मैंने बना के रखे हैं, जो आपको HID से आप फाइंड करोगे, आपको सारे स्टॉक मिल जाएंगे। मतलब जो भी आपको देखना, ब्रेकआउट स्टॉक देना है, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लो वोलेटाइल रेंज बाउंड है, आपको ऑल टाइम हाई में फाइंड करना है, मोमेंटम में जो कोई ट्रेड करता है उसको देखना है, 52 लोगों का 10% की रेंज में नीचे है, गुड फंडामेंटल स्टॉक जो 20% ऊपर से गिरे हुए हैं, 40% लार्ज कैप डाउन मोर देन 40% 52 वीक हाई के नजदीक है। सो ये सारी चीज ना फ्रीली अवेलेबल है आपको। आप वहां पे जाओगे, HID से फाइंड करोगे, आपको मिल जाएगा। इफ यू समबडी लैपटॉप यू कैन स्टिल फाइंड इट। आपको वहां से मिल जाएगा, स्कैनर से आपको रेडीमेड सारी चीजें मिल जाती है। एंड इट इज पब्लिकली अवेलेबल, मतलब मैंने कुछ प्राइवेट नहीं रखा है, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। बिकॉज बहुत सारी चीजें, और ये सारे स्क्रीनर भी बाकी सारे भी उन्होंने, स्क्रीनर ने अपने हिसाब से वैल्यू बना के रखे हुए हैं। ये मेरे स्क्रीनर से पॉपुलर थीम्स है, जिससे ने बाय है, जिसको लगता है कि FI कहाँ में बाय करे, उसका किसी ने डेट कम किया हुआ है, कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रहा है, तो ग्रोथ विदाउट द डायल्यूशन, तो ये सारी चीजें आपको लो ऑन द 10 डे एवरेज, उसका 10 साल की एवरेज, सब आपने कुछ बाय किया हुआ है लेकिन उसकी 10 साल के एवरेज अर्निंग से उसका कम हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, और मे बी इट इज थिंकिंग इट्स द वैल्यू बाय, तो वहां पे आप उसको चेक कर सकते हो। करेक्ट, ये वाला आपका न्यू हाई, ब्रेकआउट वाले स्टॉक से सारे, ठीक है, आप वहां पे चेक कर सकते हो कौन से न्यू हाई बना रहा है। जस्ट टू शो यू, इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्क्रीनर, राइट, तो आप यहाँ पे न्यू स्क्रीनर करके कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर, वेरी सिंपल। ये साइट का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से आप ये उसको लिख सकते हो, आपको कोई बड़ी जार्गन नहीं। मेरे पास और भी चार्टिंग टूल्स है जहाँ पे आप टेक्निकल फंडामेंटल बहुत सारी चीज डाल सकते हो, बट दिस इज ब्रॉडली ऑन द फंडामेंटल, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आपको फॉर फंडामेंटल है, टेक्निकल कुछ कुछ चीज अलाउ करते हैं ये, बाकी सारे नहीं करते हैं, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देख लूँ एंड उसका 5 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख डाल दूंगा, इधर 5 लाख डालूंगा, इसका मतलब है 5 लाख करोड़। आप अगर देखोगे साइड में, यू सी इट्स द वैल्यू इन करोड़ दिखाता है, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका टैग है। आप जब डालोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी करंट मार्केट प्राइस, आपकी करंट मार्केट प्राइस से कितनी है, मैं डालोगे 5 लाख करोड़ से ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो 5 लाख करोड़ के ऊपर है, तो एटलीस्ट यू विल गेट अ आइडिया व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपनी। आपके पास सिर्फ 11 कंपनी आ रही है जो 5 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, ओनली 11 कंपनीज, ठीक है। एंड टोटल कितनी कंपनी जो ट्रेड हो रही है, आप ये चेक करिए। मैं 5 करोड़ के ऊपर का या 1 करोड़ के ऊपर की करोड़ कंपनी मांग लेता हूँ, राइट। आपके पास टोटल 5,310 कंपनीज और 9 कंपनीज है, उसमें आपकी जो 5 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ 11 है, बाकी 5,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 कंपनीज है वो बिलो 5 लैक्स है। विल अगेन सी ये कहाँ पर दूसरे कंपनीज आती है, हाउ मच इज अ काउंट, ठीक है। मैं धीरे धीरे रिड्यूस करता हूँ, सो एटलीस्ट यू विल नो कि व्हाट आर द काइंड ऑफ कंपनी यू शुड लुक फॉर, ठीक है। मैंने 1 लाख करोड़ की कंपनी मान ली, 1 लाख करोड़ के भी ऊपर 106 कंपनी आ रही है, ठीक है। एंड इफ आई टेक 550,000 करोड़ एंड अबव, थोड़ा सा ज्यादा आएगा बिकॉज मार्केट इज लिटिल डाउन, थोड़ा कम आएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, 196 आ रही है। अभी जो 200 कंपनी मैंने ली थी अभी, ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 1,000 1,500 पॉइंट निफ्टी, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा कंपनी दिख रही है, बट इसके पहले इट इट वेंट अप टू 180 कंपनीज, ठीक है। बट दिस इज ब्रॉड लेवल, जो 200 कंपनीज है, दिस आउट ऑफ दिस 200 कंपनीज यू कैन कंसिडर दैट 90% और 90%, 95% आर फंडामेंटली गुड कंपनीज, फंडामेंटली गुड कंपनीज, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्टडी कैसे करें।
ठीक है, एंड आपको टेक्निकली कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया क्या करना है। आइडियली यू शुड नॉट यूज एनवेलप बिफोर एनी कंपनी विच इज लेस देन 1 लाख करोड़। मतलब आपके पास जो 100 कंपनीज आपके पास आई थी, उसी के अंदर आपको एनवेलप करना है। तेरे बहुत दूसरे सारे ये भी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हो। उसकी सेटिंग्स अलग है, आई मे नॉट बी एबल टू शो एवरीथिंग हियर, बट आई शो यू सम ऑफ द स्क्रीनर्स के सम ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप यूज कर सकते हो, और आपको सिंपल सिंपल करके आपको अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने बताया। अब गलती से आपने बोल दिया कि नहीं एलएनटी तो अच्छी कंपनी है। ओके, और यूजुअली आपको ना अभी न्यूज आएगा कि अभी मार्केट में कुछ नहीं है, वॉर खत्म होने दो, हम देखेंगे ये देखेंगे। कितनी बार अपने ग्रुप में मैंने लिखा भी होगा, इफ यू सी दिस आई हैव रिटन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, दिस इज अ गुड कंपनी टू बाय। अब देखो बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके उसके ऊपर गया। अब समझो मैंने यहाँ पर भी बाई किया होता, आई एम फाइन विथ इट, राइट। 3400 में बाई किया होता, 3300 में भी बाई है, 3200 में भी बाई है। जो लेवल पे मेरे को मिल जाए, ऑल दो इट इज जस्ट 3% ऑफ द वैल्यू, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिस कर गया तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है ना। ये बहुत सारी चीजें मैंने सपोर्ट रजिस्टर में मार्क की हुई है। अगर वो नहीं जाता है और मेरे को बहुत ज्यादा गलती से, बाय मिस्टेक, इफ आई गेट इट हियर एट दिस पॉइंट, बाय मिस्टेक, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये मिल ही जाएगा, लेकिन समवेयर अराउंड ईयर मिल जाएगा ये जगह पे। ठीक है, 3000 के अराउंड आई मेक ऑल। इसके बाद भी बहुत टाइम देखा है कि आपको नीचे भी गया है, इट हैज गॉन मल्टीपल टाइम्स, इट हैज गॉन बिलो दिस, विच इज आई एम फाइन टू होल्ड। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है इसको होल्ड करने में। ये जगह पे आ गया, 2800 आ गया, गलती से और नीचे चला गया। ठीक है, अब एल एन टी जैसी कंपनी का फंडामेंटल तो अब भी नहीं, 2700 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, द मोर इट गोज डाउन, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकली एक कंपनी में देखा है कि ये नीचे जब जाता है ना, ये कम से कम 50 to 100% रिटर्न देता है, इफ यू होल्ड फॉर 1 ईयर और मोर। ठीक है, आपके पास 100% रिटर्न या 50% रिटर्न भी बोल दो, तो आपको 1 साल में कौन देता है या 2 साल में कौन देता है। इवन इफ यू टेक इट 20% और 25% CAGR ऑन एनी कंपनी, विच इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई फॉर योर दिस थिंग इन वेरी वेरी हाई परसेंटेज। ठीक है, so this is one. Any more company if you want to see, I'll just show you what exactly you can do with this. Now और कोई कंपनी आपको देखनी है जो लार्ज कैप है, जो टोटल 11 कंपनी हमने आई थी उसमें से कोई आपको देखना है, तो यू कैन पुट इट अक्रॉस। तो आई विल पुट इट, यू कैन ओपन द माइक, और इफ यू वांट टू राइट ऑन चैट यू कैन टेल मी। मैं यहाँ पे 5 लाख करोड़ के ऊपर ही कंपनी मान लेता हूँ। दीज आर 11 कंपनी। इफ यू वांट टू सी एनी कंपनी, और जब भी आप ये मारोगे ना स्किनर पे, बाय डिफॉल्ट वो आरओसी पे ये करता है, बाय डिफॉल्ट वो आरओसी पे जाता है, इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आप देखो टीसीएस का हाईएस्ट है, एंड इट इज अवेलेबल इन द चीप डार्क पार्ट, वो नीचे है अपने काफी उसके ऊपर। ठीक है, एनीबडी वांट्स टू सी एनीथिंग, अदरवाइज विल गो ऑन टू द लिस्ट व्हाट आई हैव मेड इट, राइट। एनीबडी वांट्स टू सी एनी ऑफ दिस स्टॉक, विच एवर यू से यू सेलेक्ट, आई एम ओके विद इट। अब बताओ, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा कि उसको ब्रॉड लेवल में, इफ यू वांट टू सी ऑन द लार्जर कैप, लार्जर व्यू, इन 5 6 10 20 ईयर्स आपको कैसे दिखेगा। जस्ट राइट विच एवर यू वांट, आपको यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू वांट, एनीथिंग यू वांट डालिए, और आपका माइक ओपन करके बताइए आई एम फाइन विद इट। यू हैव टू बी इंटरेक्टिव, अगर नहीं आया तो आई विल नॉट एंजॉय द सेशन, और यू विल नॉट रादर एंजॉय, खाली ये लेक्चर के लिए नहीं है। नहीं सर, इसमें से, फ्रॉम दिस, वो ले लूंगा मैं, HL भी लूंगा, कैंस भी लूंगा मैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप चेक करिए कि कौन सा है, इसमें कोई चेक करना है आपको, और इट इज गुड। एनी वांट टू टेक दिस। चलो, किसी को लार्ज कैप में इंटरेस्ट नहीं, एवरीबडी वांट्स टू अर्न एवरी डे। SBI, चलो SBI लेता हूँ। ठीक है ना, ना SBI का सबसे पहले व्हाट आई डू इज आई चेक द फंडामेंटल्स। ठीक है, SBI इज अ बैंकिंग सेक्टर। नाउ यूजुअली देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया आई यूजुअली लुक एट, आई लुक एट P। ठीक है, विच इज प्राइस टू अर्निंग, इट्स द रेशियो। ऑल दीज आर फाइनेंशियल रेशियोज, राइट, कोई तो टेक्निकल रेशियो या फिर प्राइस के एक्शन भी सामने है। आई टेक अ फाइनेंशियल रेशियो में ब्रॉड लेवल में, वाई हैव टेकन दिस समथिंग योर चॉइस, सो एटलीस्ट वी सी इट इज नॉट बाय पर्सनल चॉइस, राइट। अगर आपने SBI में इन्वेस्ट किया है तो आपको 1.5% आपका डिविडेंड यील्ड मिलेगा। नाउ डिविडेंड यील्ड बेसिकली व्हेन यू इन्वेस्ट, सपोज यू इन्वेस्ट 100 रुपीज, आपको 1.5 रुपीज एज ए डिविडेंड मिलेगा इफ यू होल्ड दिस फॉर अ होल ईयर। ठीक है, सो आपका एक यहाँ पे कॉस्ट आएगा, डिविडेंड आपका ये है।
ये आपको दिखाएगा कि 52 वीक हाई लो में ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये उसकी प्राइस वैल्यू है, तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, हम से करेंगे इट इज इन्वेस्टेबल है नहीं है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो जब आपने उसका दिया था 11 कंपनी में उसका 60% प्लस था। अब इसका आरओसी आरओई इतना कम क्यों है, वाइड इज सो लो, राइट? क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है, उनका काम क्या है, उनको पैसा लेना है और पैसा इन्वेस्ट करना है और बिजनेस को देना है, उसमें से करना है, तो उनका मार्जिन बहुत कम होता है, बट वॉल्यूम इज वेरी हाई फॉर देम, राइट? इन लैक्स एंड करोड़ रुपीज हो जाता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में जाता है। इसके लिए उसका ये कम होता है, बट इट इज प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है उसकी, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, मार्जिन थीन होते हैं, दे आर सर्टन रेगुलेशन, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। उसके एनपीएस भी होते हैं, इसके लिए उनका ये बहुत ज्यादा नहीं होगा आपका। सेकेंडली, आप अगर चेक करोगे ये वाली चीज जो नॉर्मली बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो बहुत कम वैल्यू है, अगर आप किसी का भी डेट टू इक्विटी देखोगे, डेट टू इक्विटी मतलब क्या है, आपका जितना इक्विटी है, जो भी आपका मार्केट, जैसे यहाँ पे इसका जो भी इक्विटी होगा साइज, इसके सामने उसे डेट कितना लेके रखा हुआ है। ठीक है, नाउ डेट बेसिकली आपने बोरो किया हुआ है मनी और आप उसको यूज कर रहे हो, राइट? तो यूजुअली ये रेशियो है ना, लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन कोई भी बैंकिंग, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाओगे, ये आपको कोई कभी भी जिंदगी में एक से नहीं, मतलब मैंने तो एक भी नहीं देखा। आई डोंट नो, यू विल फाइंड वन ऑफ वन। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अगर वो है तो इसके लिए बहुत खराब है, इनफैक्ट ये उल्टा है। इसके अंदर ये कम है तो ये बहुत खराब है, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, सो यू आर अनेबल टू बोरो, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो आपके फंड्स को अपनी तरफ। तो ये वाला होता है, क्योंकि उसका बोरो होता है, तो ये हमेशा हमेशा एक से ज्यादा होगा, कभी 3, कभी 5, कभी 10, कभी 12, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, वाटर बैंक टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका एनबीएफसी भी, ये सारी चीजें ज्यादा होगी, राइट? कोई भी देख लीजिए। ना यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग चेक करो कि पब्लिक होल्डिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बिग क्वेरी मेरी खुद की बनाया हुआ मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एफ आई डी आई और प्रमोटर, एफ आई डी आई और प्रमोटर को सारे को मैंने ऐड कर दिया है, राइट? तो मेरे लिए सारे सेम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एफ आई का कितने होल्डिंग, डी आई का फील्डिंग है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि वो किसके पास कितना है, ठीक है, मेरे लिए वो सब अपनी औकात से बाहर है। ठीक है, दे इन्वेस्ट इन करोड़ एंड करोड़ रुपीज, जो अपने हिसाब से नहीं है, तो मेरे लिए तो मेरे से ज्यादा सब बड़े हैं, मतलब पब्लिक इज कॉमन पब्लिक लाइक यू एंड मी, जो हम 2 शेयर, 5 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 200, 500, 1000 लेंगे। ठीक है, आई एम गिविंग टू दैट एक्शन, किसी को 1000 शेयर भी होंगे या मे बी 5000 शेयर होंगे एसबीआई के, लेकिन विच इज अगर उसका इक्विटी आप देखोगे तो उसका 0.01% भी नहीं है वो। ठीक है ना, आपका सेल्स ग्रोथ देखता हूँ या प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, दिस इज मोर और लेस विच इज। अब जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ सिंपल चीज है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सिंपल है, राइट? इज कंपनी प्रॉफिटेबल फॉर एटलीस्ट लास्ट 5 years? एसबीआई एज ए गवर्नमेंट बैंक है, आपको मालूम हो गया पहले बेचारों की हालत क्या थी, ठीक है, अब क्या है। तो नाउ समटाइम्स यू विल फाइंड लॉस मेकिंग, बट अभी कंसिडरली देखोगे तो बहुत ज्यादा उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट इज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है उसकी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी देख लो, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी देख लो। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70, 80, 90 थाउजेंड करोड़ का अर्निंग कर रहा है। अगर इसको बोल लो, तो अगर मैं 84,000, जो भी लास्ट में 86 दिखा रहा है, 84,000 करोड़ ले रहा हूँ एवरी ईयरली 12 महीने में, अगर मैं डिवाइड करूँ 7,000 करोड़ एवरी मंथ वो अर्न कर रहा है एवरी मंथ, और इसको डिवाइड बाई 30 करूँ, तो समवेयर अराउंड 250 या 200 एंड समवेयर अराउंड आपको मिलेगा, राइट? 240 करोड़ एवरी डे कमा रहा है वो, एवरी डे, करेक्ट है ना? मतलब 200 करोड़ आपका एवरी डे इट इज अर्निंग, सो दिस इज काइंड ऑफ ट्यून व्हाट दे हैव। अब इसको जब इतना कर रहे हैं ना, तो इतना स्टॉक को गिरना, या फिर अगर गिरे हुए प्राइस में आपको जब मिलता है, दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। दूसरी एक चीज आपको दिखानी होती है, जो आपको पी टू ईपीएस का रेशियो होता है, मैं यूजुअली देखता हूँ 5 से 10 साल का। ये दूसरा ग्राफ है, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। आप देखो ये प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है, आपको दिखाएगा प्राइस कहाँ चल रहा है, जो आपको ट्रेडिंग मूव में दिखाएगा। बट यहाँ पे देखने का फायदा क्या है कि आपको टेक्निकली के साथ फंडामेंटल दिखाएगा, राइट? आपकी यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी ये जो ग्रोथ हो रही है उसके सामने प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ कंपनी है जो आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, फिर भी आपका प्राइस डाउन है। ठीक है, जैसे आई डोंट रिमेम्बर कि कैसा है, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ कि आपका
कोलगेट। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, मेरे को आइडिया नहीं क्या है, बट आई एम जस्ट सेइंग मैं बिटन डाउन स्टॉक ले रहा हूँ अभी। देखो 52,000 करोड़ की कंपनी इतना गिरने के बाद, बट इफ आई टेक 10 years ग्राफ, आपका पी का रेशियो देखोगे, ये देखो आपकी कंपनी ग्रो हो रही है। दिस इज पीछे के जो ब्लू बार है, ये आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, यहाँ पे इट इज ग्रोइंग। अब ये चीज था ना, ये बहुत अनयूजुअल था। इफ यू सी हियर, ये अनयूजुअल है, कंपनी ग्रो हो रही है यहाँ से, लेकिन आपका पी डाउन हो रहा है। ये जो ब्लू लाइन है विच इज डाउन, तो ये आइडियल सिचुएशन है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ये नॉर्मल सिनारियो है, आपका प्राइस भी, कंपनी भी ग्रो हो रही है और पी भी ग्रो हो रहा है। लेकिन पी जिस हिसाब से फास्ट ग्रो हो रहा है, इट इज अ डेंजरस साइन। तो यहाँ पे ये चांसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, सबने बोला होगा कोलगेट ले लो, कोलगेट ले लो, कर लो, आप कोई नहीं बोलेगा। राइट, ये जब वापस इसी मुकाम पे जाएगा, एवरीबॉडी विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस कि कोलगेट ले लो करके। आई एम जस्ट गिविंग आइडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दिखा देता हूँ कि इस लेवल पे अगर आपने बाय किया होता, आई जस्ट पुट अ रेड लाइन। रेड लाइन इज समथिंग कि अगर आपने इस लेवल पे अगर बाय किया होता समवेयर अराउंड दिस रेंज, आपका क्या डेंजर है। जहाँ पे पीक उसने किया था पी का, यहाँ पे, और समवेयर अराउंड इस रेंज में, ठीक है ना, इस रेंज में बता रहा हूँ, दिस इज और दिस में, ठीक है। ये जब मैं मार रहा हूँ, रेड वाला है जो हाई है, ठीक है ना, और मैं अभी मार रहा हूँ ग्रीन, जो आपके पास अच्छे डाउन टर्न में थे, जो उसने पी रेशियो कम किया था। एक यहाँ पे, सपोज ये बहुत ही लो था, मैं यहाँ पर भी मार लेता हूँ, आई टेक 10 साल का है, एक यहाँ पे मार लेता हूँ, एक यहाँ पे मार लेता हूँ, आई जस्ट पुट इट हियर, जो एकदम से स्पाइक मारा था उसके बाद, ठीक है। आई टेक दिस डाउन समवेयर अराउंड, स्पेशली यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। एंड आई टेक वन रिसेंट वन, जो भी यहाँ पे, राइट, व्हाट इज द करंट रेट। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया मिलेगा। नाउ आई गो टू प्राइस। देखो जहां जहां ग्रीन था, ठीक है, देखो यहाँ पे रेड था, मार्केट ने टॉप किया, ठीक है, यहाँ पे रेड था, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पे ऊपर चला गया। बट रिसेंटली आप चेक करोगे, जहां पे रेड था, जो पाइक बहुत गया, उसने ऑलमोस्ट उस टाइम पे ये बना दिया था, टॉप बना दिया। अब उस टाइम पे ग्रीन में अभी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, तो आपको उसको लेना है, नहीं, दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी, बहुत। आपको पी क्या है, आपका ईपीएस क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हाँ, प्रॉफिटेबली आप एक चेक कर लो। एक सबसे पहले चेक करो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रो हो रही है, ठीक है। आपके पास अगर ये समझ में आता है नंबर्स आपको, ठीक है, उसको सिंपल तरीका भी लेने का भी और है, राइट। आप यहाँ पे चेक करो कि ग्रो हो रहा है, इट इज ग्रोइंग, ठीक है। आपका सेल्स ग्रो हो रहा है, स्लो स्पीड में है लेकिन हो रहा है ग्रो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखाएगा ये सारी चीजें। ये स्टॉक का प्राइस है, इसको आपको लेना नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो मूव होते रहता है, उसके बाद में कैसे यूज करने का देखा। ये आपका सेल्स ग्रोथ है, आपको दिखाएगा सेल्स ग्रोथ क्या हो रहा है, पिछले 10 साल में ग्रो हो रहा है, 3-4% पे हो रहा है, विच इज फाइन। आपका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, जितना सेल्स ग्रोथ उससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, विच इज गुड, ठीक है। आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छा खासा मेंटेन है। आपका जो पैसा एम्प्लॉय कर रहा है, सेल्स ग्रोथ नहीं, लेकिन आपका पैसा अच्छा सा काम कर रहा है। और उसके सामने आप देखोगे तो बहुत जगह आपको देखोगे अच्छी खासी प्रॉफिट, लास्ट 1 ईयर में इससे 22% का करेक्शन दिया है, जबकि कंपनी तो ग्रो हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी डिसीजन है, राइट। इट इज यू हैव टू डिसाइड कि भाई ये मेरे को अच्छी है या नहीं, अच्छी इन्वेस्टेबल है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ठीक है। आपका अभी चाहिए था केंस, ये स्पेलिंग है सर, स्पेलिंग क्या है आपकी, ये अच्छा डाला था, KYANS। कहाँ आ रहा है सर आपका, आपने कौन सा स्टॉक डाला है, KYANES, कॉपी कर लेता हूँ मैं। आपने गलत स्पेलिंग डाला है शायद, केंस टेक्नोलॉजी का। Kens। ये आ रहा है सर, केंस टेक्नोलॉजी, की नोट केंस। आप स्पेलिंग ठीक डाले, केंस का है तो सही, मेरे को आइडिया है स्टॉक, फिर उसका स्पेलिंग आइडिया नहीं।
केन्स टेक्नोलॉजी, हाँ ये वाला है। आपने स्पेलिंग गलत डाला था। ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी 26,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। आप पहले इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल में जाएंगे। ठीक है। ठीक है। करंट प्राइस आपका 3,800 का है ऑलमोस्ट। आपको 52 बिलियन को शायद अभी मारा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजी कंपनी के आपको सारी चीज़ आपको अच्छी जगह पे मिलेगी। स्टॉक का पी 66 है। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है ना। अदर आरओसी ठीक है उसका, ये भी ठीक है। पब्लिक होल्डिंग 20% विच इज़ ऑल्सो ठीक है। डेट टू इक्विटी भी ठीक है। कोई इसमें इशू मेजर नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके ग्राफ में जाते हैं। आई एम जस्ट शोइंग दिस राइट। पी रेशियो ठीक है। अच्छा है। कंपनी ग्रो अच्छा, ये 22 से ही है। आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है इसका। 5 साल का डेटा, उससे ज़्यादा डेटा नहीं है। रिसेंटली लिस्टेड है। ठीक है। हम उसका प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। हम जस्ट गिविंग ब्रॉड लेवल में, हम मैं 2-3 मिनट में कैसे इसको एनालाइज करता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कंपनी ग्रो हो रही है। ठीक ठाक हो रही है ग्रो। ठीक है। प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। अब यहाँ पे 23% का डाउनफॉल उससे दिया हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। आपका आरओसी मेंटेन है। ठीक है। आपका इन्वेस्टर में कितने हैं, इन्वेस्टर में कौन कौन बाई है वैसी। 53% इसने स्टेक सेल किया हुआ है। किसको सेल किया हुआ है? 57%, 53%, 10% स्टेक सेल किया हुआ है। किसको सेल किया हुआ है? ये 15% से 20%। ये प्रॉब्लम है। 6% जो उससे 10% चाहिए, उसे 6% तो पब्लिक ने लिया हुआ है। अगर एफ आई डी ए लेता तो मेरे को कोई इशू नहीं था। ठीक है। बट इसका ये है, लेकिन कंपनी तो फंडामेंटल ठीक है। कोई इशू नहीं है। ये देखो 8% से इसका 8% है। उसे बाई किया था, सेल करे 13% से वापस, ये 3% इससे लिया है। सो 4-1% इससे लिया है, बाकी सारी 6% कंपनी ने लिया हुआ, राइट। अगर आप यहाँ पे एफ आई डी ए में चेक करोगे तो थोड़ा सा नीचे आपको दिखने को मिलेगा कि कौन से कंपनी में इसे रखा हुआ है, कौन सी कंपनी उसको बाई कर रही है, राइट। सो इट इज, आप देखो तो एफ आई डी ए आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कौन इसको बाई कर रहा है। ठीक है। मोस्टली म्यूचुअल फंड्स और आपकी फॉरेन कंपनी इंस्टीट्यूशन होगी। तो ये अभी तो कंपनी तो ठीक है, फंडामेंटल कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब विल सी। मैं ब्रॉड लेवल में दिखाता हूँ क्या है, क्योंकि कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आई कैनॉट पुट दिस ऑन, देयर मल्टीपल इंडिकेटर्स में यहाँ पे दिखाऊंगा, एक इंडिकेटर कभी डाल के। एनएस। अब देखो वाइल्ड स्विंग इसने कितना दिया है। इन रिसेंट टाइम में 25 से 26 से 1-1.5 साल में उसे कितना दे दिया, ऊपर गया, जम से धाड़ से नीचे आया, 50% डाउन। ठीक है। यहाँ से अगर गया ऊपर से, मैं बोलूँ यहाँ से उससे मारा, कितना परसेंट आई थी उससे? 200, डबल हो गया था। तो उससे 50%, मतलब आपका रिटर्न फिर भी 100% है आज। अगर किसी ने पहले रिटर्न किया होता तो आपका रिटर्न फिर भी 60-70% है। ठीक है। अब उसने वापस दिया, यहाँ से वापस उसने जम दिया। इट हैज गिवन अगेन सेम टाइप पे जम दिया है। 94, ऑलमोस्ट 100%। वहां से वापस 50% के ऊपर डाउन हुआ है। तो आपके पास अगर रिस्क कैपिटल है, आपको होल्ड करने की क्षमता है, तो आप इसके इस समय पे बाई कर सकते हो, अगर आपको चाहिए। क्योंकि 50% डाउन है, ऑल टाइम हाई से 60% के करीब करीब। कंपनी फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज दैट उसका जो पी है काफी हाई है। ठीक है। एंड सेकेंडली आईटी अभी बीटन डाउन है। ठीक है। बट आपको आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप बीटन डाउन में यूज करोगे उसको, राइट। आप यहाँ से इसकी इसकी टारगेट, ओनली थिंग इज आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। तो आप उसको ये 50, 60, 70, 80% के लिए आप होल्ड कर सकते हो। मे बी ये आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट नो। आई एम हियर नॉट टू रेकमेंड एनीथिंग। बट आपने क्योंकि क्वेश्चन पूछा मेरे को, आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर। ये बात आपके पास देखोगे तो यहाँ पे करीब करीब 234 डेज, मतलब आप 8 महीने के करीब आप पकड़ लीजिए, आपका 100% का रिटर्न है। तो ये डाउनफॉल आया, एक बार उसने ये रिटर्न दिया हुआ है। दूसरी बार देगा कि नहीं देगा, आई डोंट नो। या फिर यहाँ से और 50-60% नीचे जाएगा, विच ऑल्सो आई डोंट नो, राइट। तो अलग अलग कंपनी में आप इसको इन्वेस्ट करते हैं। फंडामेंटली हमने बहुत ब्रीफली मैंने चेक कर लिया, इन्वेस्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, उतना मेरे लिए काफी है। सेकेंडली उसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो पी है। देर आर मेनी पैरामीटर्स यू कैन चेक द कंपनीज ऑन, राइट। सो आपको डिसाइड करना है। सेकेंडली कंपनी का साइज रीजनेबली छोटा है। ठीक है।
26,000 करोड़ की बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन इट इज नॉट वेरी लार्ज असर। सी अभी हो सकता है कि पहले वो 50,000 करोड़ की कंपनी रहेगी, 50% डाउन होने के बाद वो आ गई है वहां पे, विच इज ऑल्सो नाउ डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, 50% आपका डाउन है यहाँ पे, देखो। ठीक है, आपका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, दिस इज अ गुड साइन, वो भी अच्छी चीजें हैं। तो उसमें ऐसा नहीं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो पीएस कितने हैं। आप यहाँ ब्रॉड लेवल में ये कंपनी आपको दिखाते हैं, इसका कंपनी का कॉन्स एंड प्रोज क्या है, आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उसके जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट है वो ग्रीन में लिखेंगे वो लोग, राइट। उसकी कंपेरिजन में आप चेक कर लो कौन सी कंपनी है वो टेक्नोलॉजिकली क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके उस पर चेक कर लो, इस लॉट में आपको अच्छी कंपनी मिल रही है नहीं मिल रही है, फिर उसकी कंपेरिजन में जो उसने 7-8 कंपेरिजन दिया है, इन लोगों ने ग्रुप करके रखा है 8-8 कंपनी का, 7 कंपनी का, सॉरी 7 कंपनीज का ग्रुप है। आप जाओगे तो वो 7 कंपनी जैसे आईटी में है तो एवरी टाइम चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। अगर टीसीएस लो, इन्फोसिस लो, या आपके एलएनटी ले लो या वो ले लो, तो उसके साथ उसकी कंपनी की ग्रुपिंग है, उसने पीएस मतलब उसके सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में उसने उसको ये किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एयरटेल मारता हूँ, भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो इसकी जब पीएस में आप देखोगे तो आपको देखो टाटा टेली, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एग्जाम और वोडाफोन, भारतीय एयरटेल, आपको रिलायंस, ये सारी चीजें आपको साथ से साथ कॉम्बिनेशन दिखेंगे। अब रिलायंस में मार दूं, अभी रिलायंस के साथ भारतीय एयरटेल है, अब मैं रिलायंस मारता हूँ यहाँ पे। अब इसकी कोर कंपनी और हो सकती है। ठीक है, इसे देखो उसने क्या लिया, उसका मेजर जो बिजनेस था ऑयल एंड सेक्टर का, वो उससे लिया, लेकिन वो क्योंकि वो जियो में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में है, तो सॉरी एयरटेल में भी वो आ रही है, करेक्ट है। ठीक है, सो अपने अपने हिसाब से, लेकिन देखो उसका मेजर पीएस कौन है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सारे सारे ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज है जो उसकी, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उसका उसने ये लिखा हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको देखना है एचडीएफसी बैंक। मैं 2-3 अलग सेक्टर देखो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक लिया है। इसमें कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको दिखेगा नहीं। जहाँ पे मैं एसबीआई मार दूंगा तो सारे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक बता देगा। ये देखो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई इंश्योरेंस है क्या ये, हाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिया है, तो देखो सारे इंश्योरेंस का दिया है। देखो जैसे ही मैंने पीए देखा, मेरे को समझ में आया मैंने कुछ गड़बड़ मारा है। ये सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको देखो यहाँ पे दिखा रही है। देखो इसके पीयर 7 नहीं है तो उसने 6 ही लिए, उसके पीयर नहीं आ रहे 7, उसके बिजनेस में ज्यादा लोग नहीं है तो नहीं है। एसबीआई कार्ड, एसबीआई बैंक। अब क्योंकि पीएसयू बैंक बहुत है, तो सबके अलग अलग पीएस आएंगे। देखो एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये। अब हम जो मैंने बैंक ऑफ इंडिया मार दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा मार देता हूँ, चलो मैं। ठीक है, इसके पीएस चेक करो। अब उसे एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सारे सेम आए, राइट। अब बैंक ऑफ इंडिया मारता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे सेम के सेम आ रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसे भी बहुत है जो इस बैंक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन बैंक है आपके पास, है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक नहीं है ना इसमें, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। पहले तो बहुत सारे थे, अब कम हो गए। इंडियन ओवरसीज बैंक, देखो इंडियन ओवरसीज बैंक में भी एक निकल गया, बाकी सारे के सारे सेम है। 8 आ गया, देखो इंडियन ओवरसीज बैंक में और एक जोड़ दिया, 7 की जगह 8 कर दिया उसने। ठीक है, आईओ भी उसमें नॉर्मली में था तो यहाँ पे आ गया, राइट। पंजाब एंड सिंध बैंक, मैं और देता हूँ, पंजाब, जम्मू कश्मीर बैंक, बहुत सारे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब सिंध, और कौन सा है पंजाब में, पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब इसके पीएस चेक करो, देखो वापस उसने क्या किया, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ, ये ऊपर के 7 उसने कांस्टेंट रखे हुए हैं, नीचे एक अंदर आते जाता है। ठीक है, जेएन के बैंक देख लो। अच्छा छोटे छोटे बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, ये सारे स्मॉल स्मॉल एनबीएफसी है, राइट। देखो उसका 2,400 करोड़ का ही है, उसके पीएस देखो क्या क्या है, ए स्मॉल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इक्विटेस स्मॉल बैंक, जनधन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल कैप, सर्वोदय स्मॉल कैप, ये सारी चीजें
अलग अलग उसके पीएस आएंगे। ठीक है। तो ये जब आप देखो तो उसके पीएस में भी कहाँ पे काम करते हो, कौन सी कैटेगरी में काम करता है। सेकेंडली, यू कैन सी हियर अबाउट द कंपनी। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कंपनी के बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या चीज कंपनी कर रही है, कितने टाइम से उसके क्लाइंटल की। आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो कंपनी के बारे में, ऑब्वियसली 5,000 कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो अगर नहीं है, मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें मेरे फिल्टर में आया है, एंड आई वांट टू सी कि कंपनी कैसे कर रही है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, आई कैन ऑलवेज सी दिस कि कहाँ पर आ रहा है। करेक्ट है ना। तो ये मेरे को सारी चीजें बताएगी, उसका डेमोग्राफी मिक्स क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी क्या है, उसकी एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, वो सारी चीजें उसको यहाँ बताएगा। राइट। आपको जितना चेक करना है, और कौन से ग्रुप की कंपनी है, कितने टाइम से हुई है, वो सारी चीजें बताएगा वो। राइट। सो दिस समथिंग वेरी ब्रीफ अबाउट। आपको डिटेल में जाना है तो आपको बहुत सारी चीजें एनएसए में मिल जाएगा, और बहुत सारी साइट से यहाँ मिल जाएगा। तो आपका ये हो गया एक। अब आ गया HAL। ठीक है। आपका ये 2,75,000 करोड़ की कंपनी है, विच इज़ वेरी सब्सटेंशियल। आज के सब जानते हैं HL अपने डिफेंस में काम करता है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1% मिल रही है आपको। पी इसका है। ROC काफ़ी अच्छा है। ठीक है। पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है, विच इज़ ऑल्सो गुड। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है, बट विल सी फंडामेंटली उसको चार्ट में क्या दिखता है आपको। राइट। आपको भी यहाँ पे 10 साल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलेगा। ये रिसेंटली लिस्टेड है, 10 साल पुराना नहीं है कंपनी, लेकिन फिर भी है काफी। ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे मीडियन पी इसका ना, ये उसका मीडियन पी है। यूजुअली ये मीडियन पी के नीचे होना चाहिए। ठीक है। कंपनी ग्रो हो रही है, विच इज फाइन, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक? लेकिन ये लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ा सा ही ना, ये आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट इज उसके मीडियन पी थे जो चल रही थी। अब बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन कि उसको पहले ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे मीडियन पे भी ट्रेड कर रही थी। अब वो अच्छा खासा ट्रेड करे, अब उसको चाहिए था 5 ईयर्स के पी पे देख लो, तो 5 ईयर में थोड़ा सा बेटर मिलेगा। अब 3 ईयर में देखो तो 3 में शायद यहाँ 3 ईयर में नीचे मिल रहा है आपको। ठीक है। सो बट यूजुअली मैं 5 और 10 ईयर्स देखता हूँ। बट आपको लगती है फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, यू आर कन्विंस कि ये इसका ऑर्डर बुक अच्छा है, या फिर गवर्नमेंट इसको काफ़ी पॉलिसीज में, हम डिफेंस में काफ़ी करेंगे, आप बाई कर सकते हो। ठीक है। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। मैं हमेशा कभी भी ये नहीं बताता, सपोज मेरे को 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं एक स्टॉक के अंदर, मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है। आइदर यू डू 40, 30, 30, और मे बी 30, 35, एंड वॉट एवर 35 अगेन। ठीक है। और आई डू इज 25, 25, 25, 25, और आई कैन डू 25 पहले लो, फिर 40% लो, और फिर बाकी का जो बचा आप उससे ले सकते हो, और मे बी उसमें भी दो डिवाइड करो आप। ठीक है। अगर मेरे को 35, या फिर मैं 30 लेता हूँ, मैं 5-5% नीचे जाता है ना, तब बढ़ा दे रहता हूँ उससे, जो 45 हो गया, ये मेरा 100% हो गया। राइट। सो एज इट गोज डाउन, तो मेरे लोअर लेवल पे मेरे को ज़्यादा मिलता है। सो इट इज़ योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी भी 100 रुपीज एक साथ नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा इन्वेस्ट हो गया, सपोज मैंने 25 to 30% इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक में, जो मेरा नीचे जाएगा शायद बाय करने के लिए रखूँ। ठीक है। बिकॉज मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज करता हूँ, सो इसके लिए आई डोंट गो 100%। ना ही मैं स्टॉप लॉस यूज करने का किसी को एडवाइस करता हूँ, मेरे क्लास में कोई स्टॉप लॉस एड नहीं करता है। ठीक है। आपके पास अच्छी कंपनी, आप एंट्री करने के पहले सोच लो कि आपने अच्छी जगह पर एंट्री किया। उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नाउ डिफरेंट है, लार्ज कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए अलग अलग एवरेजिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है। उसके अंदर 10 से 20% या 25% की आपकी एवरेजिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कि आपको जहाँ पे करने का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, वो प्रोसेस डिफाइंड है कि आपको कब उसको करना है। आपको ठीक लग रहा है, बट उससे काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। मैंने अभी रिसेंटली बताता हूँ, मैंने ग्रुप में डाला था, आई जस्ट शो यू। ठीक है ना। हम्म, मेरा व्हाट्सअप, हाँ। ठीक है। ये मेरा जान का बैच है, जनवरी का बैच है, आई जस्ट शो यू। ठीक है ना। ये देखिए, ये मेरा था, मैंने डाला था ITDC 13%। अब जो मेरे स्टूडेंट नहीं डाला था, सर ITDC ऊपर गया। ठीक है। अब आप चेक करोगे तो ITDC मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट में मैंने डाला था, बट मैंने यहाँ पे डाला कि मेरे GTD देखो, GTD बाई HDFC IRSC। तो मैंने लिखा था कि हम ये करते हैं कि हमारी जो स्टडी हुई है क्लास में, उसके हिसाब से हमको क्या बाई क्या सेल आ रहा है। ठीक है ना।
यहाँ पे मैंने ये बताया था कि मेरी कितनी बाई थी, यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल है, राइट। 23 मार्च को मैंने बाई किया था, 9 मार्च को मैंने बाई किया था, और मैंने 24 नवंबर को बाई किया था, करेक्ट। इफ यू सी द क्वांटिटी इज डिफर, आपने 87 क्वांटिटी है, 108 क्वांटिटी है, 125 क्वांटिटी है। जो मेरी पहले बाइंग थी वो 575 पे थी। इफ यू सी दिस, माई फर्स्ट बाइंग वॉज 575 यहाँ पे, उसके बाद 463, उसके बाद 395, ठीक है ना। अब जब मेरे को कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर इफ आई फाइंड द कंपनी इज गुड और आई एम इन्वेस्टिंग, तो मेरा जैसे मैंने बोला था कि आई डोंट इन्वेस्ट मोर देन 2% और 3% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज। आई डोंट इन्वेस्ट टू मनी थिंग्स। सर बहुत सारे इवेल्यूट में, खाली यहाँ पे सारी चीजें इवेल्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं खाली बता रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली आई बॉट कॉलगेट एंड 2200 एंड समवेयर अराउंड, ये मेरे बाइंग प्राइस थी उसकी शायद, या 2160, ऐसी कुछ बाइंग प्राइस है मेरी, ठीक है। एंड स्टिल इट इज डाउन, आई डोंट नो, अभी मैंने तो प्राइस देखा भी नहीं है, आई थिंक वो 1800 या 1900 के करीब गया था। तो मेरे बाइंग प्राइस से नीचे गया था वो, राइट, विच इज फाइन, आई जस्ट होल्ड इट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कभी, आप ग्रुप में बहुत टाइम से हो, तो मैंने एक एनालिसिस डाला था एशियन पेंट का, मैंने एक एनालिसिस डाला था रिलायंस का, ठीक है। सो आई ऑलवेज कीप ऑन पुटिंग समथिंग विच इज आई फाइंड सुटेबल। मेरे को लगता है कि आपको जिसको समझ में आता है थोड़ा पैटर्न, आई कैनॉट रेकमेंड के बाय या सेल। एज अ सेबी गाइडलाइंस आपको किसी को बोलना अलाउड नहीं है, अनलेस दे आर डूइंग दिस बिजनेस एंड दे हैव लाइसेंस टू डू सो, ठीक है। आप नहीं कर सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। बहुत जन ने अपने आर ए लाइसेंस सबमिट कर दिए है, बिकॉज सेबी इज बिकम टू स्ट्रिक्ट। बट हम ये सिखा सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप देखोगे तो 23 मार्च, वी आर ऑन टुडे व्हाट, 12th of अप्रैल, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे खाली मैं लिखता हूँ 395, आपका है 463, फॉरगेट अबाउट द क्वांटिटी, मेरे को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं बनता है। दिस इज ऑन 9th of मार्च, दिस इज 9th मार्च। अब देखो मैंने कितने फास्ट एवरेजिंग की उसको, 9th मार्च को मेरे को मिला, और 23 मार्च को मिला, राइट। मतलब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 2 हफ्ता है, ठीक है। बट आई गॉट दिस, सॉरी ये उल्टा है, 23 ऊपर है, 9th यहाँ पे है, ठीक है। उसके पहले मैंने लिखा था 24 नवंबर को, 24 नवंबर को मैंने बाई किया था 575 में, 24 नवंबर, नवंबर, ठीक है। तो नवंबर, आज नवंबर से भी चेक कर लूँ, अगर 24 ले लूँ, और मैं अप्रैल का पूरा महीना भी गिन लूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 5 महीने में, 5 मंथ्स, ठीक है। मेरा एवरेज प्राइस अगर चेक करोगे तो समवेयर अराउंड, इसको एवरेज करोगे तो हम समवेयर अराउंड को 450 का एवरेज प्राइस मिलेगा। दिस इज व्हाट यू गेट एवरेज प्राइस, राइट। अब ये देखियोगे कभी कभी ना कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखोगे, नाउ माय फर्स्ट बाय वाज 5, और ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आई हैव रिटन इन द ग्रुप, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में मेरे को लिखने के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। एवरीबडी कैन राइट ऑन, इट्स अ फ्री, हमारे जहाँ पे स्टूडेंट है सारे, ये सबको फ्री है, आपको जो लिखना है सारे जन देखो सबने रिटर्न भी ये भी किया हुआ है, आप आगे जाके देखोगे तो। अब देर अराउंड 33 मेंबर्स आते हैं, राइट, ये सारे मेरे क्लास के स्टूडेंट है, राइट। देर आर मल्टीपल, एक 33 यहाँ पे है, कोई जगह पे आप सितंबर, जनवरी, सबके अलग अलग मंथ है। आप चेक करोगे देखो यहाँ पे सितंबर, सितंबर का भी मेरा एक ग्रुप होगा, ये वाला सितंबर टू मार्च बैच, ये देखो, ये आपका 26 लोग यहाँ पे है, ठीक है। जून का बैच होगा एक, दिसंबर जून बैच होगा, यहाँ पे भी 18 लोग हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू फॉर्म दिस, अलग अलग लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एडवाइज ही करता हूँ, ये सारी रिसर्च है, मैं और एक रिसर्च भी बताऊंगा आपको क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये आप देखो तो यहाँ पे ये, और मैं ये नॉर्मली फ्री ग्रुप में नहीं डालता हूँ, ठीक है। आई डोंट पुट इट इन द फ्री ग्रुप, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आईटीडीसी एवरेजिंग स्ट्रेटेजी मैंने लिखा था कि भाई मैंने एवरेज कैसे किया हुआ है, जस्ट टू शो कि कैसा है, राइट। The first buy was 570, went down to 370, डाउन बाय मोर देन 35%। जब वो 35% से डाउन था, उसमें मैंने 2 बार एवरेज किया है, फ्रॉम माई फर्स्ट बाय एंड 4 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में उससे 35% डाउन गया था। जब मैंने बाय किया था वो भी डाउन था, फिर भी मैंने, बट 1 2 गुड डेज एंड डन, ठीक है ना। आपको 1 2 दिन अच्छे मिलेंगे और फट से आपको निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट 35 to 14% इन 4 मंथ्स,
यू कैन कैलकुलेट द CAGR। मैंने बोला आप खुद कैलकुलेट कर दो कि 4 महीने मेरे को ये 13.5% का रिटर्न मिल रहा है, मेरा क्या है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको कहाँ पे इसका टारगेट क्या है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, नाउ सोल्ड एज अ पार्ट ऑफ ए, जो मेरे स्ट्रेटेजी है, ABC या PQR में जो स्ट्रेटेजी बना था उसके हिसाब से मैंने पार्ट ए मेरा सेल कर दिया है। आई एम होपिंग टू फर्दर बॉट एट 395, माइस 29% ARR रिटर्न है, 34% इन 70 days, बेनिफिट ABC बाइंग सेलिंग, ठीक है ना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ITC 13% अप टूडे 500 प्लस, आई विल बुक माई प्रॉफिट एज पर द ABCD स्ट्रेटेजी एंड आई थिंक शुड गो टू 550 और 600। ये मैंने किस कब लिखा था, दिस हैव रिटर्न ऑन थर्सडे, ये थर्सडे को, मतलब आज हम संडे में है, थर्सडे को मैंने लिखा था। आपको मैं सिर्फ इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग स्टडी अबाउट द कंपनी, यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है। IT स्पाइक मारा है उसने, दिस इज हाउ इट इज। नाउ फॉर दिस गेन यू टू स्टॉप। अब मेरे को ये था कि वो मेरा टारगेट था कि ऊपर जाएगा, बट वी शुड नॉट वेट फॉर द हाईएस्ट टारगेट, राइट। आपको अपना पैसा मिल रहा है, विद इन 3-4 months यू आर गेटिंग 15-20% रिटर्न, यू शुड बी वेरी हैप्पी, ठीक है। अब उसको जाता है, उसको जाने दो, कभी कभी यहाँ पे 700 भी चला जाएगा तो अफसोस करेंगे लोग, अफसोस मत करो, ठीक है। अपना जो मिल रहा है अपने को, वी गॉट अवर बेनिफिट, वी शुड बी हैप्पी। इन्वेस्ट करो, बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो आपको अलग अलग जगह मिल सकते हैं, राइट। नाउ एक तो एक सैंपल है जो मैंने यहाँ पे दिखा है, दूसरी आपको कोई क्वेश्चन होगा कि सर हम फिल्टर कैसे करें स्टॉक को, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये सारी चीजें ना, ये मेरा पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, एंड बहुत बार मैंने ग्रुप पे लिखा है। इफ यू रियली वांट टू मेक, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट, मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, मतलब इंडिकेटर बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे, राइट। इफ यू सी दिस, मेरे को जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जैसे ये वाला एक अलग इंडिकेटर है, दिस विल गिव यू साइन कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नीचे भी आप देखो तो RSI बना हुआ है, ये सॉलिस्टिक RSI बना हुआ है, आपके दूसरे हैं बी, ठीक है। ये आपको दिखाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सुपर ट्रेंड है, एक अलग है। अब ये सारे स्टैंडर्ड है, आप गूगल में यूट्यूब में जाओगे 1001 वीडियो आपको मिल जाएगा, राइट। ये आपको सुपर ट्रेंड है, आपको दिखाएगा कि मार्केट बाय सेल कब करना है। लेकिन ये ट्रेंड देखो, कभी कभी आप फेल भी हो जाए, उसके ऊपर भी चला गए, अब वो वापस ऊपर ऐसे सुपर ट्रेंड में लाइन ऊपर बनाएगा, अब बाइंग दिखाएगा आपको। तो ये कभी कभी ना रेड दिखाता है, कि रेड ये दिखाता है को बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं सब इंडिकेटर्स है, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। मैं यूजुअली उल्टा बाय करता हूँ, देखो मेरा 575 का पहले बाय था, ये देखो यहाँ पे था जब नीचे आया था, मेरा इस जगह पे बाइंग था समवेयर अराउंड, ठीक है, 570 दिस प्लेस, राइट, इट वाज माय बाइंग। जानी हो रही है, मैंने नवंबर में लिया था, यहाँ समवेयर हेयर, राइट। इट वाज माय बाइंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जो ऊपर से थोड़ा नीचे आया था, मेरे को लगा था यहाँ सपोर्ट लेगा, नहीं लिया, उससे नीचे गया, आई केप्ट ऑन बाइंग, ठीक है, मैंने दूसरा दूसरा बाई किया, बट दिस हैज गिवन मी गुड रिटर्न, ठीक है। मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट है कि वो यहाँ तक जाएगा 700 प्लस। इट मे नॉट गो, इट गो और इट मे नॉट गो, मैंने वहां पे GT लगा दिया, अपने आप सेल हो जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा एवरेज बाय 450 का था, मेरा एवरेज बाय 600 650 का होगा, आई एम हैप्पी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फर्स्ट 530 में बेचा, अभी 600 नीचे बेचा, 700 में दूसरा बेचेगा, तो मेरा एवरेज बाय 600 के अराउंड, 600 610 के अराउंड आ जाएगा। अगर वो 2 महीने में आया या 2 दिन में आया, या फिर एक स्पाइक ऊपर मार दिया, मार्केट अच्छी चली तो आएगा, नीचे जाएगा तो अगेन आई विल बाय द सेम स्टॉक, मेरे को जो रिटर्न दे रहा है, वाई आई शुड नॉट बाय, करेक्ट है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे, तो ये बहुत सारी है, जैसे अभी ये V20 आपको दिखाएगा 20% की रैली कब होती है, ये सिग्नल अपने आप जनरेट करता है, और ये सारे फ्री इंडिकेटर्स है, ये ऑल फ्री इंडिकेटर्स, ऐसा आपको कुछ जरूरत नहीं है सब सोचने की कि आपको कहाँ पे ये मिलेगा। ये 20% से ज्यादा रैली मिलती है, तो आपको डिफाइन करता है कि 20 25% 30% की रैली दिखती है, आपको इसको बंद करना है। मेरे बहुत फास्ट में जाऊंगा, शो हाई प्राइस लो प्राइस, ठीक है, आपको दिखाएगा, देखो आपको सिर्फ परसेंट दिखा रहा है कि कब जनरेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि इसको आपको यहाँ बाय करना है, आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल के रख सकते हो कि भाई यहाँ पे जब आएगा तब ये रिटर्न मेरे को देना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट इट दिस टाइम, ये जनरेट होगा जब आपका ये जनरेट हो चुका होगा, ये आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया, इसने एक ही दिन में 25% दिया, यहाँ पे 21% दिया, राइट। अब उससे बोला कि यहाँ आए तो बाय करना, देखो आपको आया था यहाँ पे, ऑन दिस लेवल इट हैज कम टू दिस लेवल, आपको GT डाल के रख देना कि भाई ये लेवल पे आएगा मैं वापस बाय करूंगा उसको। ये लेवल पे आया, आपने बाय किया,
एक आध परसेंट 2% आप सोच सकते हो आपके हिसाब से क्या अच्छा है। इफ यू आर पेसिमिस्टिक यू कैन पुट इट उसके जो प्राइस उसके 2% नीचे दे सकते हो। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बोला कि मेरे को 10% ही चाहिए, 5% ही चाहिए, आपने बाई किया। अब कौन सा डेट था ये सिग्नल आया था 29 फेब को, ये आपको दूसरा सिग्नल कब आया? 3 मार्च को। विद इन जस्ट 15 डेज आपको दूसरा सिग्नल मिला, उससे रिटर्न भी दिया। ठीक है, आपका दूसरा सिग्नल आया, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, ये आया ही नहीं प्राइस पे, इट डिड नॉट कम टू दिस प्राइस। उसमें दूसरी सिग्नल आपकी जनरेट हो गई यहाँ पर। ठीक है, इट इज जनरेटेड दिस लेवल। आप देखोगे तो आपने जीटी डाल दिया, अभी ये दूसरा सिग्नल है ना, इसको कुछ कुछ सेव करना होता है। यहाँ पे जनरेट हो गया आपका, उसके बाद आपको इस लेवल को भूल जाना है, इस लेवल पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे था, उससे वापस लिया, यहाँ पे मेरे को ये लेवल था, तो मैंने यहाँ पे 575 मेरे को लगा था कि ये सारी चीजें ठीक ठाक है, कंपनी जाएगी ऊपर, तो मैंने लिया था। लेकिन ये जब देखो अभी नहीं, अब ये जनरेट ना यहाँ पे करेगा, ये जब नीचे मार्क करेगा ना, ये देखो आपका स्टार है, ये जब रेड कैंडल देगा, आप देखना, मूव कर देना, ये आपको V20 का वापस सिग्नल देगा यहाँ पर। और वो आपको बताएगा यहाँ पे, जिससे बताया ना 23%, 25%, तो ये आपको बताएगा यहाँ पे कितनी रैली हुई है। जिससे चालू हुई ना यहाँ से, जब से वो चालू हुआ डाउन नहीं हुआ, उसको वहां से गिनेगा वो, यहाँ से गिनेगा ये जगह पे, और उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क करेगा, वो 73% दिखाएगा। देखो आपको 73% विद इन स्पैन ऑफ व्हाट, 30 मार्च से लेके, मतलब 10 दिन के अंदर उसने 70% का रिटर्न दे दिया। अब जब मेरा 35% डाउन था, आई एम नीड लेस बॉदर्ड, मेरे को कोई फर्क नहीं, जब कंपनी अच्छी है, सारी मिले, तो वन ऑफ द कंपनीज है, और ये कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है। आई जस्ट शो यू व्हाट कंपनी इट इज, हाउ बिग द कंपनी इज, ITDC। लेकिन ये मेरे फंडामेंटल स्कैनर में आई थी, तो इसके लिए मैंने उसको रखा था मेरे रडार पे। ठीक है, ये देखो 5,000 करोड़ की कंपनी है खाली, नॉट वेरी बिग कंपनी, और इसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे छोटा है। ठीक है, मेरा 1 2 1.5 2% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी कभी मेरे को अच्छी लगती है तो मेरा रूल्स में ब्रेक कर देता हूँ वन ऑफ द केस में, अगर 2% की या 3%, 4% या 5% भी लेता हूँ, या 5% के सामने 7% भी लेता हूँ, अगर कंपनी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, मेरा रूल है कि रिलायंस, L&T या HDFC बैंक, कोई भी लार्ज कैप 5% से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस मेरे को 1,000 रुपये में मिल गया, आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग, और मेरे को 2,500 में मिल गया, और मेरे को 600 रुपये में या 500 रुपये मिल गया, आई मे गो आउट ऑफ माई वे टू पम्प मोर मनी इनटू दिस, क्योंकि ये प्राइस वेरी रेयरली आपको दिखेगा। आई एम जस्ट गिविंग, मेरा आइडिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है, आई मे बी कंप्लीट रॉन्ग। ये यहाँ से 500 रुपया भी जा सकता है, ये यहाँ से 1,200 भी जा सकता है, यहाँ से 300 भी जा सकता है, बट आई एम रेडी टू टेक दिस बैट, कि भाई ये अच्छी कंपनी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जा मैं होल्ड करूंगा जब तक मेरे को, अगर इस लेवल पे अगर मेरे को मिल गया, आई मिनिमम टू मिनिमम, दिस वेरी लार्ज कंपनी, मिनिमम टू मिनिमम आई एम फॉर 70 to 80% रिटर्न, अगर ये रेट में मिलता है, जो कि नहीं मिलेगा मेरे को। करेक्ट है ना? जो मेरा आज अनुमान है, ये मेरे को अभी तक लाइफ टाइम में ये प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वो बोनस आया, स्प्लिट आया, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन एज अ वैल्यूएशन आपको ये वैल्यूएशन में, अगर मार्केट निफ्टी 18,000 जाती है आज के दिन से, ठीक है, टुडे वी आर ऑन 24,000, ठीक है, तब पॉसिबली है कि रिलायंस आपको 1,000 में मिलेगा, हो सकता है, आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको L&T 2200 2400 में मिलेगा, और आपका HDFC आपको 600 में या 500 मिलेगा, 500 550 मिलेगा, विच इज़ वेरी रेली। 600 भी पकड़ लो तभी भी बहुत है। ठीक है ना, अगर 600 भी पकड़ लिया मैंने, करंटली आज उसका 800 का प्राइस है, अगर यहाँ से आप ये सोच लो 200 पॉइंट नीचे होता है ना, मतलब 25% इसको डाउन है, ये भी 25% डाउन है, ये भी 25% डाउन है, अगर वहां से हमने पकड़े, ये कब आ सकता है? जब ये मार्केट 25% डाउन आएगी यहाँ से। ठीक है, ये हो सकता है मार्केट 25% डाउन हो, या आपके 30% या 35% डाउन हो, ये मार्केट 10% डाउन हो, तो ये 15% डाउन हो, विच इज हाईली पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि मार्केट डाउन है 10%, कोई स्टॉक आपके 5% प्लस भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन कि साइकिल रोटेशन क्या होता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं और एक एडवांस लेवल की फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये जो स्टॉक है ना, आपके पास ओनली थिंग इज ट्रेडिंग व्यू में आपका एडवांटेज ये है, ये वन ऑफ द गुड टूल यूज बाय मैनी ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है, अच्छी टूल है। आप यहाँ पे देखोगे, आप अपने वहां पे चेक करोगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी।
आप अगर फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके फ्री वर्जन यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये बना सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारी वॉच लिस्ट बना सकते हो, देखो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरी वॉच लिस्ट बनाने जाऊंगा तो मेरे को मना कर देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये वाला फ्री वर्जन है, ठीक है। दिस इज माई फ्री वर्जन, ठीक है, दिस इज माई फ्री वर्जन। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो मैंने, क्योंकि मेरी फ्री वर्जन मेरा वाला है, मैं ये यूजुअली शो के नहीं, देखो कितनी इंडिकेटर्स वाली है, राइट। एवरी टाइम इट हैज गिवन इन 3 to 4%, 5% रिटर्न, ठीक है। मतलब ये मैंने ग्रीन और रेड जो है ना, मैंने वो ऐसे ही बाई किए हुए नीचे दूसरे इंडिकेटर से मिक्स करके, और ये एनुअल के साथ मिक्स करके क्या ट्रेड कर सकते हो जो आप, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। बिकॉज आई ट्रेड इन फ्यूचर ऑप्शन ऑल्सो, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि कहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दिस वे आई यूजुअली गो लॉन्ग इन टू इट। तो अभी मैंने यहाँ तक किया था, उसके बाद इवेल्यूट नहीं किया है। अगर यहाँ पे आएगा अगेन आई गो, ठीक है। 1250 के अराउंड मेरा अगर टारगेट मिल गया मेरे को इसमें, आई मे थिंक ऑफ गोइंग फॉर एफ एन ओ और बाइंग इट अगेन, राइट। मे थिंक, मैंने बोला आई विल बाय, वैसा नहीं है। मैं सोचूंगा उस टाइम पे सिचुएशन क्या है उस टाइम पे, बट यहाँ ये पक्का है कि लोअर बैंड पे आपको मिलता है, इट इज अ गुड टाइम टू बाय, ठीक है। अब ये वाली है मेरी, यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है। अगर मैं यहाँ पे, ये प्राइमरी वॉच लिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू वॉच लिस्ट, एड लिस्ट, क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट, देखो यहाँ पे मेरे को दिया मल्टीपल वेज मॉनिटर इज नॉट पॉसिबल, आपके पास नहीं है। अगर मैं 30 से ज़्यादा स्टॉक भी डाल दूँ तो मेरे को अलाउ नहीं करेगा। मेरे पास 30 स्टॉक डालने का खाली रिस्ट्रिक्शन है। और मेरे पास फ्लैग करने के लिए भी ना, मैं खाली एक फ्लैग कर सकता हूँ। देखो मैं अगर रेड फ्लैग कर दूँ, केवल मेरे को रहेगा, मल्टीपल कलर फ्लैग्स इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे जब मेरे पास यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी है, मैं आपको खाली एक एडवांटेज बता रहा हूँ क्या है आपके पास, राइट। अगर जब मेरे पास यहाँ पे है तो मैंने ये देखो, यहाँ पे मैंने 200 लिस्ट की जो एच आई डी मार्केट कैप ग्रेटर देन 50,000 करोड़, ये जब मैंने बनाई थी लिस्ट 200 की, वो मैंने बना रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे जब बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पेड वर्जन है, ये नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको फ्लैगिंग करनी चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आपके पास पेड वर्जन है, आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। यूजुअली इसका ये आता है, ऑफर्स आता है ब्लैक फ्राइडे नवंबर के करीब करीब आपका ऑफर आता है, विच इज़ अ गुड टाइम टू एंटर अगर आपको चाहिए। उसके 3 वर्जन है, ठीक है। आप हाईएस्ट वर्जन में जाओ तो आई थिंक 24,000 के करीब आपका जीएसटी वीएसटी लगा के सब होता है, विच इज़ अ गुड एरिया टू 20 to 24,000 आपका कुछ लगता है। अब आप देखोगे मैंने फ्लैग किया हुआ है, अब मैंने फ्लैग किस हिसाब से किया और मेरा टाइम क्यों बचता है, वाई इट इज वर्थ टू इन्वेस्ट सच काइंड ऑफ टूल। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेड फ्लैग है और ये मैं जहाँ 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 इंपोर्ट करूंगा ना वहाँ जाएगा। अब मेरी लार्ज कैप तो मेरे एनवलप के हिसाब से आई एम मेकिंग इट हियर, आई एम जस्ट शोइंग यू वेरी क्विकली हाउ क्विकली आई कैन फिल्टर द स्टॉक्स वेरी फास्ट, राइट। अब मैंने यहाँ पे देख लिया ये रेड फ्लैग है, मतलब मेरे को नहीं बाय करना है अभी, राइट। वो मैंने फ्लैगिंग करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकेंड। देखो नहीं बाय करनी है, अडानी कंसोल नहीं, देखो ऊपर है। नाउ दिस इज आई एम टेकिंग एज ऑफ नाउ, राइट। आज के दिन में सारा ये आज के दिन की एवेल्यूट करेगा, राइट। अब देखो नहीं करनी, ऊपर है, नहीं है, ठीक है। ये सारे ऊपर है अभी, राइट। अब ये देखो ये एक्सिस बैंक पहले एक टाइम पे इन्वेस्टेबल था यहाँ पे नीचे, उसका फ्लैग अभी चेंज हुआ है, मैंने ऊपर चला गया, अब बाय कर लिया, उससे 10-15% बढ़ गया, छोड़ दो उसको। ये देखो जितने लाइन में आए थे, देखो BL, देखो सारे अपना रिसेंटली आप देखोगे ना, देखो ब्लैक लाइन से ऊपर मारा, देखो यहाँ पे नीचे से ब्लैक लाइन, देखो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भी मारा है, देखो मेजर यहाँ पे मारा। आई एम नॉट सेइंग कि वो वहां पर जाके अच्छा मारा, मार्केट ने भी सपोर्ट किया, बट यूजुअली देखो ये आपको वहां पे दिखाता है, राइट। BL, ठीक है। अब देखो भारत फौज, ये सारे रेड फ्लैग है, मैं अभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा उसके अंदर क्योंकि सारे ऊपर है, ठीक है। अब मैं आपको ग्रीन फ्लैग दिखा देता हूँ, आई शो यू सम ऑफ द ग्रीन फ्लैग्स। ये ग्रीन फ्लैग है मेरे, राइट। देखो नीचे है, अब ये पहले इस जगह पे जब वॉकर, 1 महीने पहले ना, इट वाज ऑन रेड फ्लैग, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मार्केट डाउन हुई है, तो मेरे लिए सर्च करना क्या है, 200 स्टॉक है, मेरे को 10 मिनट लगता है मेरे को स्कैन करने के लिए। मैं फट 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 जाता हूँ, मैं फ्लैग चेंज करता हूँ, और फ्लैग चेंज भी नहीं करूँ तो मेरे पास लिस्ट बन जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंख से देख के मालूम कर सकते हैं कि भाई ये करूँ ना करूँ। ये देखो ये सारे मेरे रेड फ्लैग्स है, अरे ग्रीन फ्लैग्स है, ये देखो। अभी मेरे था एनर्जी, देखो यहाँ पे रेड ग्रीन फ्लैग में आया था, झम से ऊपर गया वो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे आया, ये वाली भी देखो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन भी मार्क करके रखी हुई है 770 पे, देखो उसके बाद उसने 20% की रैली, देखो आपने देखा ना, ये देखो
20% की रैली उसने दिखाई, इसको भी दिखाएगा भाई 30-35% का। ये जैसी रेट लेगा, मे बी कल परसों जब भी लेगा वो, ये यहाँ पे ये फ्लैग मार्क करेगा 21, क्योंकि मेरे दोनों इंडिकेटर अलाउड है। अच्छा, सेकेंडली आपके पास फायदा क्या है, आप मल्टीपल इंडिकेटर डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने तीन चार तो मैंने रखा है, ये तो बहुत लोअर वर्जन है, दिस इज एब्सोल्युटली लोअर वर्जन में लिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके एक इंडिकेटर है, एक दूसरा इंडिकेटर है, तीसरा इंडिकेटर है, चौथा इंडिकेटर, मैं डालते जाऊँ यहाँ पे, पांचवा इंडिकेटर, अब मेरे को एरर देगा वो। अब नहीं दिखा रहा, देखो क्या हो रहा है। रन टाइम एरर। ऐसा नहीं कि इशू इसमें है, इशू इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इश्यू मैं नहीं लगा सकता उसको, क्योंकि मेरे पांच इंडिकेटर हो गए, तो मैंने बंद कर दिया। अगर मैं इसको बंद कर दूं और फिर मैं यहाँ करूं तो मेरे को दिखा देगा वो, राइट। सो आई कैन इनलोड 5, जो मेरा हायर वर्जन है। ठीक है, तो मैं मेरे स्टूडेंट को इसके ऊपर ट्रेन करता हूँ, दैट इज अ हैक व्हाट यू कैन ऑलवेज डू दिस। तो मैं मेरे स्टूडेंट को भी ये एक्सेस होता है किसी किसी टाइम पे, जब मैं देता हूँ उनको कि भाई आप चेक करो, इवेल्यूएट करो कहाँ पे आ रहा है, तो मैं ये फ्लैगिंग करके रखता हूँ, तो उनके लिए रेडीमेड स्ट्रेटेजी होती है, दिस इज अ रेडीमेड दिस थिंग। ठीक है, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस। ठीक है, देखो, कैन, तो ये जितने ना, देखो जितने नियर बैंड में है ये सारी चीज बात कर रहा है। देखो, एक मेरी कंपनी थी, मैं अभी बताता हूँ, आई जस्ट से इट इज ऑल्सो, से इट इज गिवन 41%। मैंने मार्क भी किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था नीचे था बिटन डाउन, जब मार्केट पूरी नीचे आ रही थी। नाउ दिस इज वेयर यू शुड सी द ब्यूटी। अब आप डेट देखिए यहाँ पे, 2 मार्च, 3 मार्च, ये देखो, जब मार्केट सारी नीचे फॉलो हो रही थी, 26 मार्च, जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट, अपना सॉरी ईरान वॉर चालू ही हुआ था। आप देखो यहाँ पे 9 मार्च, 10 मार्च, फेब्रुवरी में, राइट, यहाँ पे देखो, जब ये चालू हुआ था इससे 40% रिटर्न दे दिया। ठीक है, उसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे इसी फ्लैगिंग के ही है, फ्लैगिंग के ही पार्ट है। ठीक है? आप देखो, ये पहले रेड फ्लैग था, दिस वाज रेड फ्लैग अर्लियर, एंड इट इज नॉट वेरी फार, 27 फरवरी, अब ये आएगा ग्रीन फ्लैग में मेरे, राइट। इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर बाय करना है तो, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन ऑलवेज फाइंड, कि अच्छी चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब जैसे HL है, आपको HL देखो ग्रीन फ्लैग में था, दिस वाज इन ग्रीन फ्लैग, दिस इज टेक्निकल नॉट द फंडामेंटल, राइट। मैं टेक्निकल भी चेक करता हूँ, ये प्योर टेक्निकल है। अब यहाँ से ऊपर देखो आपने HL कितना रिटर्न दिया है, 19% रिटर्न दे दिया विद इन 16 डेज, मतलब 2 वीक के अंदर, राइट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। So anything you have, you tell me. So I have taken fundamental, I have taken technical. There are different things. Although I cannot cover everything, lot of things. नीचे भी दूसरे बहुत इंडिकेटर्स है, आप अगर देखो लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स है। सो इट इज ऑल बीन टॉट इन द क्लास, कितने हैं, कहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है, आई जस्ट शो यू वन मोर हियर। और समझो आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझ में नहीं आता है, ये आपको लगाना नहीं आता है, एक सिंपल है, तो बहुत लेमन सी चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, आई जस्ट शो यू, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, राइट। ये वाले स्टॉक्स है, गुड स्टॉक्स, यहाँ पे कुछ आपके पास अवेलेबल है, बैड स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स। ये मेरी पहले की लिस्ट बनी हुई है, ये मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मेरी खुद की स्टडी है, यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक नहीं है, 50-55 स्टॉक्स है। मैंने यहाँ पे लिखा है बायोडिप्स क्या है, उसकी क्या है वैल्यूज, क्या है, आपकी कलर कोडिंग आपको दिखेगी, बट आई शो यू विच माई स्टूडेंट यूजेस, एंड दिस इज नॉट 100% मेड माई बी, हाँ। ये मेरे 100% मेरी बनाई हुई नहीं है, FNO स्ट्रेटेजी मैंने रखी हुई है, ये मेरी स्टडी के लिए है, आपके लिए नहीं है, राइट। दिस फॉर माई स्टडी। ठीक है, ये वाला, आप देखो मैंने यहाँ पे कौन सा बैच लिखा हुआ है,
अब ये मैंने मास्टर शीट रखी हुई है, आप देखोगे कमेंट ऑफ लिस्ट मार्केट कैप एज ऑन डेट, मतलब मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है। इसमें से अराउंड 50 to 60% मैंने इवेल्यूट किया है मैंने खुद ने, राइट। और बाकी की शीट जो है, बाकी के 50% है जो मेरे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, जो मेरे को लगता है। बट इसका फायदा क्या है कि आपने जब लिखा हुआ है ये, वेन एवर इट इज रिटन, राइट, इट गिव्स यू कि आज के दिन में ये लाइव मार्केट को ट्रैक करता है, लाइव मार्केट के सामने आता है। तो यहाँ पे फ्लैगिंग रखी हुई है, आप अपने पर अपना खुद का कॉपी बना सकते हो, आप खुद एडिट कर सकते हो उसको अपने लिए। आपको मेरी कोई रिसर्च यूज करने की जरूरत नहीं, आपको किसी और चीज की रिसर्च नहीं। आपको लगता है कि भाई ये मेरे को लगता है कि ये अच्छी कंपनी है, मेरे को बाय करनी चाहिए, तो आप उससे बाय कर सकते हो। ये एक अच्छी कंपनी मेरे को सेल करनी चाहिए। आपका बेस्ट पार्ट क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपने जब लिया है ये सारी चीज, जितने ऊपर ये वाले ग्रे वाले लिखे हैं ना, येलो वाले, आपको उसमें नहीं करना है। आपको सिर्फ डिसाइड करना है मेरे को, आपने इवेल्यूएट कर दिया मेरे को बाय कब करना है। आपके पास ये जो 200 कंपनी है, दिस इज टॉप 200 कंपनी, जिसका मैंने फ्लैग आपको दिखाया था, ये सेम 200 कंपनीज है, एग्जैक्टली सेम लिस्ट है। आपको यहाँ पे बता जाएगा कि आपको क्या बाय करना है, ठीक है। ये आपने Z2 ये कर दिया तो ये आपको बताएगा अपने बाय से कितने ऊपर है, तो इसको नहीं बाय करना है। और आप यहाँ से सॉर्ट कर दोगे A to Z, तो आपको बताओगे कि कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? इज इट क्लियर? आपको वहां पे दिखाएगा कि कितने पे बाय कर सकते हो, कितने पे सेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी, ये क्यों दिखा रहा है 12%, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों अरेंज में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, यूजुअली ना ये शॉर्ट होता है अपने हिसाब से, अगर इसने लिया है। जस्ट चेक। ये देखो कभी कभी कुछ चीज करता है, बट यूजुअली ना ये ऑर्डर में आता है, यूजुअली कम्स इन ऑर्डर, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे 12% वाला नीचे कहाँ गया है। तो ये वाली कंपनी, अभी कितनी कंपनी दिख रही है आपको, 48 कंपनीज है जो आपको अपने बाइंग प्राइस से उस टाइम पे कभी डिसाइड किया होगा उसके नीचे था। और ये जब मैंने एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मैंने सेक्शन लिया था, शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जिट डेट, लास्ट संडे लिया था, उसके पहले भी लिया था मैंने, ये काउंट 85 था, 80 to 85% था, 85 कंपनी थी, मतलब 40 कंपनी इस मार्क के रेड मार्क के नीचे थी। आज देखो सिर्फ 30 कंपनी ऑलरेडी गेन दे चुकी है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है, राइट। तो वो कौन सी कंपनी थी वो, आप जाके देखोगे तो मालूम पड़ेगा, आपका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने सेव किया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है उसका मीडियम टर्म मोमेंटम क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें फ्लैगिंग हमने बहुत सारी रखी हुई है। आप उसको चेक कर सकते हो कितना है आपका 52 वीक हाई से, उसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ये स्क्रीनशॉट है। और ये सारी चीजें मेरे स्टूडेंट के लिए फ्री है, ठीक है, दिस इज ऑल रिसर्च इज फ्री। अब अपना इसका यहाँ पे जब मैं रिसर्च करूँ मेरे पास आउटफ्लो नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे रिसर्च करूंगा आपके पास इसकी लिंक होगी। जब मैं रिसर्च करूंगा तो आपके पास यहाँ पे रिसर्च मिल जाएगी, आपको मालूम रहेगा कि ये हो रहा है। लेकिन आप जब करोगे, आप अपनी कॉपी बनाओगे, इफ यू थिंक कि सर 25 नंबर का स्टॉक है ना, मैंने किया है, आप उसको ये शीट में अपडेट कर दो, आपकी जो भी स्टडी होगी मैं चेक करूंगा, इफ आई फाइंड अप्रोप्रिएट तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आपको नाम नहीं देना है इसका ना, एक चीज फिक्स है विच इज सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर जब तक ये शीट है तब तक चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पे देखा सीरियल नंबर है यहाँ पे, दिस विल नॉट चेंज। सो दिस सीरियल नंबर विल नॉट चेंज एनी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट, राइट। तो ये आपका सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी आप डालोगे, राइट। सो दिस सीरियल नंबर विल नॉट चेंज। तो आपको वहां पे जब डालोगे कि 51 नंबर का स्टॉक है, ये है वो है, तो आप उसके हिसाब से मेरे को बताओ, वो डेटा शॉर्ट हो जाएगा वहां पे, उसको अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट डेट यहाँ पे है, यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते, मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अगर जहां जहां करूँ तो आपको ये मालूम पड़ेगा कहाँ पर है, करेक्ट है ना, ठीक है। सो ये वन ऑफ द बोनसेस है जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आ सकता है जो मैंने आपको बाकी सारी चीजें बताई। एक रिसर्च होती है जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का ये होगा। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग द बैच वेरी सून, ठीक है। मैंने अभी ग्रुप पे डाला था कि टुडे द लास्ट डे टू एनरोल, उसके बाद मैं ये फीस में एनरोल नहीं करूंगा आपको, ठीक है। Now those I posted on the group, anybody has any doubt on this you can open the mic and ask, ठीक है। आई हैव मोर और लेस आई हैव कंप्लीट द प्रेजेंटेशन। आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को और पूछ सकते हो, डाउट और कुछ है तो आप मेरे को बताओ, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन कि सर ये बाय करो सेल करो, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट अलाउड टू डू ऑल्सो। आई यूजुअली डू ट्रेनिंग विच गिव्स यू लेवरेज कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। कम्युनिटी में है, आपके पास थोड़ा सा हेल्प ये मिल जाएगा
या तो मैं पोस्ट करूँ या कोई करे, हम ये करते हैं कि हमने बाई किया हुआ है, नॉट नेसेसरी कि आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप बाई करो। ठीक है, इट इज अप टू यू व्हाट एक्चुअली यू फील लाइक। मेरे को लगता है रिलायंस बाय करना जैसा है, आपको लगता है रिलायंस सेल करना चाहिए। ठीक है, अब जो डिफरेंस ओपिनियन पे है वहीं पे ये ट्रेड होता है। अगर डिफरेंस ओपिनियन होने सब बोले कि बाय करेंगे तो कोई सेल ही नहीं करेगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और कोई बोले सारे सेल करेंगे तो कोई बाई नहीं करेगा, तो मार्केट नीचे आएगा, सिंपल है। बट एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग, बिकॉज देयर आर डिफरेंस ओपिनियन ऑफ टू पीपल। वन थिंग इट हैज टू बी बॉट, वन थिंग इट इज टू बी सेल्ड। ये जब ये डिफरेंस ओपिनियन समझ में आता है, उस टाइम पे जब व्यू मैच होते हैं कि एक बोलता है सेल करो, एक जगह बाय, तब जाके आपकी ट्रेडिंग होती है, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको अगर कुछ इससे पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, और सेकेंडली, मैंने आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन ग्रुप, आई जस्ट सी जितने जन यहाँ पे है, आई जस्ट पुट इट अक्रॉस मेरे। ठीक है, मैंने कुछ कुछ जिनको ऐड करना था, मैं अभी ऐड नहीं करवा, कल ही मैंने ग्रुप बनाया है इसका। दिस इज अप्रैल बैच है, आई जस्ट पुट इट अक्रॉस। ठीक है, मैं टाइम भी बता देता हूँ, उसका टाइम क्या होगा, आई जस्ट सेंड द लिंक। जितने जन यहाँ पे, आप इसको कॉपी करके शायद अपने, या फिर यहाँ पे कॉपी करके आप अपने ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो, इफ़ यू आर फ्रॉम मोबाइल, और मे बी आपके पास व्हाट्सअप वेब है जहाँ पे आप हो, तो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। लिंक आपकी ये खत्म हो जाएगी जब ये क्लास एंड होगा, तो मैं 5 10 15 मिनट जब तक हूँ, आई जस्ट पुट इट, आई सेंड इट टू एवरीवन। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, विच इज जस्ट क्रिएटेड येस्टरडे। आप उसको अंदर ज्वाइन कर सकते हो, अभी फ्री एंट्री है यहाँ पे, देर इज नो रिक्वायरमेंट, बट ये उसी के लिए होगा दोस्तों हु ज्वाइन द बैच। मैं ग्रुप पे भी डालूंगा इसका लिंक, बट यहाँ पे मेरे को पास आ जाएगा ना, तो मेरे पास ये आइडिया होगा, मैं सेव कर लूंगा कि आप लोग क्लास में थे एंड यू आर देयर इन द सेशन। सो ये मेरे को आइडिया होगा, जो भी 8 10 15 जन होंगे, आप इसको क्लिक कर सकते हो, अभी एंटर कर सकते हो। मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रखा नहीं है अभी के लिए, बट उसके बाद वो डायरेक्ट एंट्री, आपके पास ग्रुप भी होगा तो लिंक चेंज हो जाएगी उसकी। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु वांट्स टू ज्वाइन फॉर द कोचिंग क्लास, मतलब जहाँ पे आपको ये क्लास अटेंड करना है ना। यूजुअली शेड्यूल मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, आपको उसी के लिए कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में ये डाला हुआ है। इफ़ यू वांट आई विल जस्ट शो यू वन मोर टाइम कि उसके कोर्स कंटेंट क्या होंगे, कितने सेशंस होंगे, आपकी सारी रिकॉर्डिंग उसको मिलेगी। यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द सेशंस। ठीक है, आपको अगर प्रीवियस सेशन की भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी सारी अवेलेबल है। बट यूजुअली सारा कंटेंट यूजुअली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है हर एक क्लास में, हर एक सेशन में कोई ना कोई मैं नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करता हूँ, कुछ ना कुछ नई सेशन लेता हूँ। बहुत जगह पे बहुत सेशन में मैंने, मेरे स्टूडेंट ने भी प्रेजेंट किया हुआ है। मतलब आई गिव लिबर्टी देम टू इवन इवेल्युएट सम ऑफ द गुड इंडिकेटर्स, व्हाट दे फील लाइक। दोज हु वांट टू लर्न दे विल एंजॉय द क्लास, दोज हु वांट ओनली टिप्स वो मेरा क्लास एंजॉय नहीं करेंगे, कि मेरे को यही चाहिए, बाई क्या करना चाहिए, सेल क्या करना चाहिए, वो मेरे को बताओ, वो नहीं होगा। ये वाले देखिए, ये वाला, दिस इज कंटेंट। ये सारी चीजें मैं रखी हुई है, और मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख के दी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या बोनसेस होंगे। आपका फ्री ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर मॉनिटरिंग स्टॉक ट्रैकिंग जो मैंने आपको शीट बताई, एक ट्रेडिंग जर्नल भी है जो इसका लिंक है, कि आप अपना जो ट्रेडिंग लॉग डाल सकते कि मैंने क्या लिया है। गूगल फाइनेंस का मॉनिटरिंग है, ठीक है आपका। ऐसे में शीट है स्मॉल मूविंग वेबसाइट, तो यहाँ पे कितनी शीट्स है वो आपको बता दें। वॉच लिस्ट है फॉर 200 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया, मैं दे दूंगा, आपके पास अगर ट्रेड है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बूट कैंप फॉर एफएनओ के लिए, जो मैं आपका एफएनओ के मैं स्ट्रेटेजी लेता हूँ, जो कुछ कुछ ले मेरे स्टूडेंट के लिए अलग क्लास होता है, स्टूडेंट के लिए अलग सेशन होता है। जो एफएनओ के नॉर्मल में लेता हूँ वो क्लासेस नहीं होते हैं। दिस इज समथिंग विद एक्चुअली टीच देम स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी बताओ कि आपको ऑप्शन क्या होती है, ऑप्शन की बाइंग सेलिंग क्या होनी चाहिए, या कैसे होना चाहिए, आपका कौन सा एडवांटेज है, वो सारी चीजें बताता हूँ। सेकेंडली, आपके इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग या फिर हेजिंग, तो आपको समझ में आ जाए फ्यूचर ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में लेता हूँ मैं। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन हैजिंग स्ट्रेटेजी विद एनी टू पास्ट स्टिमुलेशन में, स्टिमुलेशन बताता हूँ कि भाई ये अगर होता, आप सिलेक्ट आप कर सकते हो। और एक फॉर टेस्टिंग बताता हूँ, जो फॉर टेस्टिंग अभी मेरी चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे, और मैंने ग्रुप पे बहुत बार डाला है फॉर टेस्टिंग, मैंने एक डाली थी मार्च में। सो मार्च टू अप्रैल में एक जगह पे मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला हूँ, जबकि मार्केट ने करीब करीब 10 12% का स्विंग डाउन टर्न दिया था, और एक में मैंने आई मोर देन 110% रिटर्न बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट। लेकिन वो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, आप एडजस्टमेंट बिना समझे करो, वो थोड़ा सा डेंजरस एरिया है।
बट अगर आप सिंपल हेजिंग करके चलोगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और ज्यादातर प्रॉफिट में निकलोगे आप, क्योंकि आपकी सर्टन थिंग्स आपके फेवर में काम करती है। तो एक स्ट्रेटेजी मैंने ली थी, जो मैंने ग्रुप में भी डाली थी, कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ और मेरा ये प्रॉफिट हुआ, जो मैंने जनरल ग्रुप में डाली, आप कास्ट में जाके चेक करोगे, इफ यू नॉट रिसेंटली ज्वाइन बिफोर 10 days और सो, यू विल गेट दैट आइडिया कि वहाँ पे मैंने क्या इन्वेस्ट किया था। और हम साथ साथ में जैसे जैसे जब मैंने स्टडी ली थी, मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजी आई एम टेकिंग एज फॉर टेस्टिंग। जो मेरे स्टूडेंट थे उनको लॉजिक मालूम था कि मैंने लॉजिक क्या लेके लिया था, और हमने बोला था बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर्चुनेटली फॉर माई नसीब, या बोल दो कि अनफॉर्चुनेटली, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी बोल दो, मार्केट इज गिवन शार्प डाउनफॉल आफ्टर दैट। बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिया, मतलब मैंने आई थिंक 25,500 या 26,000 में लिया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 6 मार्च को लिया था, जब तक मेरे को आइडिया है। और अभी तक 31 मार्च तक, 30th मार्च तक जो एक्सपायरी थी, तब तक मेरे को अच्छा खासा मैंने ग्रुप में लिखा था। बट यू विल गेट टू नो कि कितनी स्टडीज होती है, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, 1 सेशन फॉर 2 3 स्टूडेंट रिव्यू पोर्टफोलियो। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, बहुत जन मेरे को भेजते हैं, सर मेरे आई यूजुअली अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम, बट मैं बोलता हूँ किसी की जगह पे किसी ने एक चीज में 50 डाल दिया, तो एक में 5 डाले, किसी में सीधा उसने 2 लाख रुपए डाल दिए। तो पोजीशन साइजिंग नहीं होती है। अच्छी कंपनी में उन्होंने 5 डाल के रखे हैं, बुरी कंपनी में 2 लाख रुपए डाल के रख दिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कितना करना है, राइट। रिकॉर्डिंग द पास फ्री सेशन अगर आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 से सेशन भी दे दूंगा जी, वो पूरा कोर्स के अलग है, राइट। तो मैंने यहाँ पे रखा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, राइट। आपके पास ज्वाइन करने के पहले ये डिफाइंड है कि सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको जहाँ पे है आपके पास, इफ यू सी दिस, तो आपके पास वो लिस्ट है जहाँ पे मैंने सारी चीज लिखी हुई है। सो मेरा डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली ठीक ठाक होता है। मैं आप ये बोल दो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, आपको ट्रैकिंग करने के लिए आसान हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी। और मैं वापस आज डालूंगा। आज ये लास्ट डे है, बिकॉज मैंने आई थिंक मैंने 15 दिन 20 दिन पहले डाला था, मैं लास्ट टाइम भी डाला था। मैं कोई देर इज नथिंग आई फोर्स टू पीपल ज्वाइन वेरी क्विकली, आज ही ज्वाइन करो, मेरा वो कोई इशू नहीं है, अभी करो वो भी नहीं है। लास्ट क्लास में भी बोल रहा था, ये क्लास में भी बोल रहा हूँ, या मैंने 15 दिन 20 दिन पहले भी जब ये मैंने डाला था, इफ यू सी माई हिस्ट्री इन द वीक, मैंने बोला था कि आपको ज्वाइन करना है, करो। ठीक है। और मेरे को बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा बैच नहीं है मेरा, कभी 15 स्टूडेंट का होता है, तो कभी 8 स्टूडेंट का होता है, कभी 10 स्टूडेंट का होता है। तो आई यूजुअली डोंट टेक मैनी स्टूडेंट, और आई डोंट मार्केट एनीथिंग। मेरा कोई पैशन नहीं, जो मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी स्टूडेंट की कम्युनिटी है, जो भी मेरे स्टूडेंट जो यहाँ पे कनेक्ट होता है, मेजोरिटी, जो मैं मैथ्स, मेरा मेजर बिजनेस है जो मैथ्स से आता है, उसी कम्युनिटी को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं किसी को मार्केट भी नहीं करता हूँ, या फिर किसी मेटा भी नहीं जाता हूँ, या ना ही कोई मेरे फेसबुक एड्स चलते हैं, किसी के लिए नहीं चलते, ना ही मैथ्स के लिए। ये मेरी सब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वॉट एवर आई एम डूइंग। एंड आई यूजुअली डू इट 3 4 मंथ्स में एक बैच चालू करता हूँ मैं, सारांश से वो खत्म हो गया, फिर मैं दूसरा बैच चालू करता हूँ। मेरे को कोई घाई नहीं है, आई डोंट वांट टू ओवरलैप। सेकेंडली, दोज हु आर इंटरेस्टेड आई पुट इट ऑन दिस बैच का टाइमिंग आई डिसाइड, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी इन द इवनिंग, लेट इवनिंग, 9 9:30 के करीब चालू होगा, 10:30 11 o'clock का उसके शेड्यूल टाइम है। और एज्यूम करके चेको, थोड़ा सा जब डिस्कशन होता है तो ये आधा 1 घंटा ऊपर जाता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ इनिशियली विल हैव 2 सेशन इन अ वीक। उसके बाद डाउट सेशन के लिए 1 1.5 महीना जो भी होगा, उसके बाद वो आपके एक सेशन होंगे वीक में। अगर आपको एक्शन करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हो। उसकी स्ट्रेटेजी है, वो रिवाइज भी होती है। ठीक है। सेकेंडली, लेकिन बहुत जन मेरे को पूछते हैं क्लास में, सर ये ले लूं क्या? मैं बताऊँ कौन सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हो, आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी में ये बाय आ रहा है। नहीं नहीं सर, ये बहुत गिरा है। आई यूजुअली नोट रेकमेंड, आपका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आपका टेक्निकल फंडामेंटल कोई सपोर्ट होना चाहिए उसके लिए। आप बोल रहे हो कि बाय करो या सेल करो, या किसी के लिए ना एक कुछ स्टडी होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए। बहुत जन ग्रुप में लिखते थे, मैंने मना कर दिया सबको, बोला बी एल इज अ वेरी गुड स्टॉक, आई बिलीव। मैंने ना नहीं बोला, बी एल इज अ गुड स्टॉक, यू शुड बाय। ठीक है, अच्छी चीज जाएगी, बट किस लेवल पे बाय करना है? मेरा 2 3 साल का उसका, व्हाट इज द फंडामेंटल। आप किस हिसाब से बोले कि 2 3 साल में डबल हो जाएगा? हो सकता है आधा भी हो जाए, वी डोंट नो। सो समटाइम यू शुड सपोर्ट विद सर्टन एरिया। अगर आप ओल्ड क्लास में मेरे पास है हो, तो मैंने इसका डाला था, एशियन पेंट का डाला था, मैंने आपको बोला, मैंने रिलायंस का डाला था, मैंने भारत बजाज फाइनेंस का डाला था, मैंने कोलगेट का डाला था। मैंने बहुत सारी जगह सपोर्ट रीजन ना उस टेक्निकली समझा के डाला था कि ये क्यों है,
व्हाई यू शुड पुट इट दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाई यू शुड थिंक। मैंने आई हैव नॉट सेन कि बाय और सेल करो, मैंने बोला ये सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, ये इसकी वैल्यूएशन है, इसको यहाँ पे कर सकते हो आप। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इनफेक्ट आप बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं आपके निफ्टी के वीजा बेस, आपका कंपनी बुलिश है या बेरिश है, आपका स्टॉक बेरिश है या बुलिश है, आपकी इंडाइसिस बुलिश है बेरिश है, आप सारी चीजें वो चेक करते हो। अच्छा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में है वो भी आप चेक कर सकते हो, आपके पैरामीटर चेंज करो तो आपको मालूम पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म में ऐसा बिहेव करता है, लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव कर रहा है। एंड यू कैन सी फॉर ऑल द 10 years, और ये सारी चीजें फ्री अवेलेबल है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको पांच दो इंडिकेटर आपको अलाउड है लगाना एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वहां पे। मतलब मेरे को 3 RSI भी देखना है, मेरे को आपको सेक्टर रोटेशन भी देखना है, और मेरे को एनवलप भी देखना है, या मेरे को V20 देखना है। ये चारों चार आप फ्री में नहीं देख पाओगे, यू विल बी एबल टू सी ओनली 2 at a time। आप लिस्ट पे डाल सकते हो लेकिन ऑन दो ही कर सकते हो एट ए टाइम। वॉच लिस्ट अब एक दो 30 का एक ही कर सकते हो विथ 30 स्टॉक्स। वो 30 स्टॉक में इंडेक्स ले लो, आप फॉरेन स्टॉक ले लो, यूएस के ले लो, इंडिया के ले लो, कोई 30 आइटम आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, सो देयर इज ओनली लिमिटेशन व्हाट आई हैव, विच इज अ पेड वर्जन। अदरवाइज बाकी सारी चीज जो भी मैंने स्क्रीनर बताया, मैंने जो गूगल शीट बताई, जो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का एक सेटअप बताया, वो सारे इंडिकेटर फ्री है। देयर आर सर्टन इंडिकेटर्स विच इज प्राइवेट यूज ओनली विच इज बॉट, लेकिन वो मैंने आपको कोई दिखाया नहीं है। वो है बॉट आउट भी है, जहाँ पे आपको बाई करना पड़ेगा उसको फॉर द सब्सक्रिप्शन, मे बी सम लाइफ टाइम के लिए है, सम आर फॉर ईयर ऑल्सो। सो डिपेंडिंग ऑन द, कोई इंटरडे में भी है मेरे पास, ऐसे भी इंडिकेटर्स है जो मैंने बाय आउट किए, जो इंटरडे में कोई कर रहा था वो बता रहा था, वो आपको इंटरडे में दिखाता है सिग्नल कहाँ पर है। देन थैंकफुली देव चेंज इट टू, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर इंटरडे में मैं करता नहीं हूँ और ये महंगा है, 21,000 के करीब करीब मैंने बाई किया था वो। ठीक है, वो फ्लैग दे देता है कि आपको यहाँ पे करना है, जस्ट फॉर ट्रायल आई हैव टेकन, ऑल्दो आई हैव नॉट नेवर ट्रेडेड इनटू दैट, क्योंकि मैं इंटरडे करता नहीं हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बट जस्ट टू स्टडी व्हाट इट इज, आई हैव इन्वेस्टेड देन मनी, वो अभी तक चल रहा है मेरे पास, काफी साल का बाय आउट है वो। सो समबडी वांट्स टू सी दैट आल्सो, आई कैन शो यू कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो देर इज अ वे आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो, कि आप देख सकते हो क्या होता है, आपको थोड़ा सा इवेल्यूट करना है तो आप इवेल्यूट भी कर सकते हो। मैं एक टेम्पररी का उसका आईडी चेंज भी कर सकता हूँ, मेरे आईडी से आपके आईडी पे दे सकता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है मेरे लिए। सो बट एनी टाइम वो एक ही आईडी पे चलेगा, मल्टीपल आईडीज पे नहीं चलेगा। ठीक है, सो ऐसे ही ये वाला ट्रेडिंग व्यू का भी है, आपको चेक करना है तो देर इज अ वे आई कैन, मतलब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बता सकता हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हो, उसका मैं ट्रेडिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट चेंज, इट इज ओनली वन लॉग इन, वो आपके मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट यू कैन सी कि कैसे आपको देखना है कि भाई मेरे को करना है, तो आपकी पेड वर्जन में जब मेरा क्लास होगा तो मैं आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आपकी जो क्वेरी रेडी होगी, तो वी कैन डिस्कस दिस एंड वी कैन टेक इट ऑन दिस। ठीक है, एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, सो विल मे बी 5-10 मिनट्स विल एंड द क्लास। मैं सारी चीजें अपने ग्रुप नया क्रिएट किया, आपने अगर ज्वाइन किया है मैं डालूंगा, और ये लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जितने जन यहाँ पर हो, ठीक है, यू शुड एंटर राइट नाउ। आप जितने हो एंटर कर दो तो मेरे को समझ में आएगा। डिम्पल मैम ने ज्वाइन किया है, करण ने ज्वाइन किया हुआ है, करण सर ने ज्वाइन किया हुआ है, तो और कोई है तो आप ज्वाइन कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को आइडिया आएगा कि आपने यहाँ से क्लास में ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, लक्ष्मी मैम है, एसपी सर है, एसपी सर का तो मेरे को नाम याद रह गया अभी। एच कौन है? एच, आई एम ऑल्सो एच, मोटरोला एज है, और कौन है आई डोंट नो, मतलब आपका नाम जहां तक नहीं है मेरे को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देर आर 3-4 पीपल ऑल्सो लेफ्ट। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आई एम स्टिल ऑन। आपको अगर डाउट है तो मैं आगे लेता हूँ, आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बाकी सारी डिटेल मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा, फीस डिटेल या फिर सारी चीजें आई विल नॉट रिवील हियर, बट आपको वहां पे मिल जाएगी, बिकॉज ये दिस इज गोइंग टू गो ऑन द, बट ये है कि जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दिस डिस्काउंट वोंट बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, मेरा बैच बनता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो, बिकॉज इफ यू कीप ऑन अटेंडिंग दिस सेशन, इफ यू डोंट लर्न, ठीक है, आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान करोगे। मे बी यू विल गेट सम ऑफ द गुड सपोर्ट इफ यू आर गुड इनफ टू स्टडी, मेरा ये फंडा है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में है बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो आपको बता रहे हैं, जो लाख लाख लेते हैं, 3-4 लाख। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, आई शो यू इंटरेस्टिंग चीज, जो मेरे अब भी मैंने ग्रुप में डाला था, मैंने आपको किसी को नहीं डाला था, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कि क्या है करके, मैंने मेरे स्टूडेंट ग्रुप में डाला था।
ठीक है, आई जस्ट शो यू, क्योंकि मेरी ये सब मेरे को कोई ना कोई कॉल आते रहते हैं, बिकॉज दे डोंट नो आई एम अ ट्यूटर और मेरा कितना एक्सपीरियंस है। बिकॉज इक्विटी मार्केट जहाँ पे सर्च करते हैं उनके पास आता है कि कौन कौन इक्विटी मार्केट से कनेक्टेड है। सो दे कीप ऑन सेंडिंग द मैसेजेस, और कॉल आते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे करो, ये करो, वो करो। क्या हो गया इसको? एक- एक तो ये हैंग हो गया है, बट ठीक है, तब तक अगर ये ऊपर होता है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, तब तक आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कि अगर ये चल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर्चुनेटली आपके नसीब नहीं होगा देखने के लिए, बट यू कैन सी द फीस पीपल चार्ज, एंड इट इज इंसेनली हाई। मतलब 3 लाख से 5 लाख के रेंज में ही चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, यार मिल गया। ये देखिए, लेट मी शो यू। या सी दिस समथिंग। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें इतना ना उन्होंने थोड़ा सा स्विंग के भी, आईपीओ ये वो, मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो आई डोंट केयर यहाँ पे क्या है। स्कैल्पिंग भी मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, डिविडेंड इनकम को जब आप बाई कर रहे हो तो डिविडेंड इनकम के लिए मैं डिविडेंड यील्ड देख लेता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ये सारी ना, ये उन लोग बताने के लिए बहुत सारी चीजें है। डिविडेंड मैं बता दूंगा, डिविडेंड आपको कैसे दे सकते हैं। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग, आप स्विंग ट्रेडिंग कर दिया, पोजिशनल ट्रेडिंग में और क्या फर्क है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इसमें क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग, ये आपको एक अलग ऑप्शन से सिखा रहे हैं। 5 डेज ट्रेडिंग, अब ये क्यों करना है, मतलब ये खाली ना ये लेग बनाने के लिए भाई ये करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ। कमोडिटी गाइडलाइंस है, देखो कमोडिटी म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में आप चैट जीपीटी डाल दो, ऐसे सिंपल से मिल जाता है। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से डाल दिया, फ्यूचर अलग से डाल दिया। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, देखो अब ये पोजीशन भी सिखा रहा है, इंट्राडे भी सिखा रहा है, पोर्टफोलियो क्रिएशन भी सिखा रहा है, आईपीओ भी सिखा रहा है, स्विंग भी सिखा रहा है। अब ये सारी चीजें ना ये देखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप खा कितना सकोगे। आपकी एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है। मेरा इंटरडे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसके इंटरडे में, कोई इंटरडे करता है उसको पोजीशन में स्विंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है, ये क्या करोगे, मतलब ये सारी चीजें बता देते हैं। एंड सी द वैल्यू, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, 3,09,000 रुपया। ठीक है, और मैंने इसको भी लिया था इसके बाद भी। ये देखो, फिर कट करके 50,000 कर दिया उसने। अब ये सारी चीजें बता, इतनी चीजें आप दे रहे हो तो 50,000, तो मैं कभी नहीं कहता कि मेरे प्राइस ऐसी है। आई यूजली से दिस इज माई एक्स प्राइस। मैं X-5%, X-10%, X-25% करता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद कोई नहीं है। मेरी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है प्राइस, मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ मेरे को। नाउ दिस इज So when you get drawn to the structure, this is like one time fee out that we have talked about. It's going to be 2.5 lakhs plus GST. So including GST. Without GST, including this 2.95, excluding this 2.5. हाँ ओके। अब ये क्या करा थे मालूम है, आप ग्रुप पे इसको चेक कर सकते हो, राइट। इसका मैं आपको चाहिए तो लिंक भी भेज दूंगा। ये इंट्राडे करता है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे। मतलब मेरे को वो करेगा और आएगा, उसका रिटर्न एक्सपेक्टेड क्या है। अगर मैंने इस पे लिया है, पूरा एक एक घंटे का वीडियो है, लेकिन मेरे पास एक्सेस डाउनलोड करने का नहीं है, बिकॉज उन्होंने इनिशिएट किया था। ठीक है, आपका रिटर्न क्या है, 18 to 20% रिटर्न उन लोग बोलते हैं कि आपको मिलेगा। अब 18% स्कैल्पिंग में ये इसमें सारी चीज में करना क्यों है मेरे को। वाई आई वॉन्ट टू स्टिक टू दिस थिंग। हाँ, आपको अगर 100% रिटर्न देता है या 50% रिटर्न देता है तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये अच्छी चीज है, टाइम भी वर्थ है। मैं यूजुअली, और इसके टाइम में ना आई एम यूजुअली स्लीपिंग। जब मार्केट ऑन होता है मैं सोता हूँ। 2 घंटे का मेरा नैप होता है, ठीक है, 1 1.5 घंटा में। बिकॉज मेरा क्लास यूजुअली नाइट रात को 11 12 बजे तक चलता है। मेरा 3 बजे से क्लास चालू हो जाता है, तो मेरा हेक्टिक 9 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, कभी कभी सुबह क्लास भी होती है।
तो ये सारी चीजें, तो मेरे को जब टाइम मिलता है, जब मार्केट खुलती है 9-10 बजे, मेरे को 3 बजे रेडी होना होता है। तो 3 बजे के पहले तो मेरे को 2 बजे, इनफैक्ट 2 बजे कुछ कुछ क्लास तो 2 बजे भी है मेरी। ठीक है। आफ्टर 2 o'clock तो मेरे को इसके पहले आराम चाहिए। तो म्यूचुअली स्टार्टिंग में देख लेता हूँ, बीच में देख लेता हूँ, आई डोंट केयर, मेरी जितनी पोजीशन है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है। मेरा जेटी लगा हुआ, बाय भी हो जाता है, सेल भी हो जाता है, खत्म। ठीक है। ये देखिए, ये दूसरा है। ठीक है। अब इसका प्राइस देखिए, लुक एट द प्राइस। 3 लाख रुपया प्लस जीएसटी, 3.5 लाख रुपया प्लस जीएसटी, 3,40,000, 545, 5 लाख प्लस जीएसटी। ये एक कोर्स का, एक मेंबर का, ऐसा नहीं कि ग्रुप की ये है, दिस वन। अभी आप देखोगे इसमें ये क्या सिखा देंगे, राइट? ट्रेंड है, ये है, वो है। सो देयर आर पीपल हु आर सेलिंग, बहुत सारी चीज सेल करते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू सी 25 to 50 लैक्स। आपका स्टार्टिंग कैपिटल 25 लैक्स है। तो इनको अल्टरनेटिव है, उनको चाहिए कि हम यहाँ पे सारी चीज लाए। ये देखो, फीस इज 3 लैक्स। ये क्या लिखा है? ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे ओनली इन निफ्टी, बस उतना कुछ नहीं करा था, निफ्टी में कर रहा है। मेरा निफ्टी का ऑप्शन क्लासेस जब मैंने लिया था, एंड दिस इज फॉर 1.5 मंथ। हाँ, इट इज नॉट इवन फॉर, ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 साल तक है। 1.5 मंथ। और इनफैक्ट आप देखोगे तो देखो, 18 to 20% एनुअली, मैंने अभी लिखा था उसको, देखो ये बॉन्ड्स। अभी क्या होता है, आप ये देखो इसका कोर्स कंटेंट क्या है, आप देखो। ठीक है। टोटल 4 लाइव सेशंस इंट्राडे, एंड 4 सेशन रिकॉर्डेड, मतलब 4 सेशन रिकॉर्डेड है, 8 सेशन कुछ आपको दे रहे हैं, एंड वीकली 1 सेशन 1 आवर ग्रुप क्लास। दैट्स इट। कोई नहीं है, 4 सेशन में आपको कितना सिखा देंगे, एंड उसकी फीस है 3 लाख रुपया। ठीक है। सो लोग अपने नाम से बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारा मिस सेलिंग भी होता है। बट डिपेंड्स कि आपको कैसा चाहिए, व्हाट यू वांट, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। और यूजुअली मेरा ये मेन बिजनेस नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ये मेरा पैशन है, इसके लिए I'm कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा इसमें कोई अरे नहीं, मतलब इनफेक्ट मेरे जो टाइम लग रहा है, कंपेयर टू व्हाट आई टीच मैथ और व्हाट आई डू समथिंग एल्स, और मेरा जो कंसल्टिंग का है, जो स्टूडेंट मेरे से एडवाइस या पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, उससे मेरे काफी अच्छा पैसा आ जाता है मेरे को। मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव इज दिस, कि मेरा इनकम का ना एक 2% नहीं है। इट इज नॉट इवन 2% ऑफ माई इनकम व्हाट आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन आई एम डूइंग। एंड आप किसी स्टूडेंट को, मेरे ग्रुप सारे स्टूडेंट में हैं, आप अगर रिव्यू लेना चाहो तो आप उसको रिव्यू बोल सकते हो कि कैसा है। आई एम वेरी फ्री, बिकॉज आई वॉन्ट टू, माई ऑब्जेक्टिव इज दैट कि स्टूडेंट को समझ में आया, एनीबडी हु बाय द स्टॉक, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत कम टाइम लगा के, हफ्ते में 1 घंटा लगा लो, बहुत हो गया। आप प्रोफेशनल जब हो जाओगे, आपको आधा घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टूल बाय कर लो, वो थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन इट विल बी वर्थ डूइंग इट। आपका टाइम बहुत बचेगा। और स्क्रीनर्स है, मैंने देखो स्क्रीनर्स फ्री है, आपको कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने के लिए, स्क्रीनर मैंने डाल के रखे हैं। आप screener.in पे जाओ, HID करके फाइंड करो, आपको मेरे सारे स्क्रीनर मिल जाएंगे। इट इज फ्रीली अवेलेबल। उसकी सारी आप लॉजिक भी देख सकते हो, मैंने क्या क्राइटेरिया डाला है वो भी देख सकते हो। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, कुछ नहीं रखता हूँ मैं हिडन। जो मेरी शीट मैंने बोली है, उसकी फॉर्मूला वॉर्मूला सब मैं दे देता हूँ। नथिंग विच आई कीप हाइडिंग। ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज आपको टूल आने से आपको चलाना भी तो आना चाहिए। मेरे पास गन ले ली, मेरे पास एरोप्लेन आ गया, मैं चला ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास 5,000 50,000 करोड़ हो गए, मेरी जेट है, पायलट नहीं तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा उसको। सो ओनली थिंग यू शुड नो हाउ टू यूज द टूल। टूल तो 10 चीज के मिलते हैं, लेकिन इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द टूल, यू कैनॉट डू इट। ठीक है। सो आपको कोई इशू है तो आप बता दीजिए। तो यहाँ पे कौन था? SP सर थे, ठीक है। थैंक यू, चले। सो आपको कुछ डाउट है तो बोलाए, अदरवाइज एंड द सेशन टुडे। ठीक है। आप जो भी है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप पर्सनली मेरे को कॉल कर सकते हो, विच एवर यू, मैसेज इज बेटर। ग्रुप में मैसेज करोगे तो आपको कॉल बैक ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। अगर आप पर्सनल करोगे तो थोड़ा रिवर्ट मेरा लेट होता है, लेट लतीफ होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैट्स बाकी होते हैं देखने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई पर्सनल पे नहीं करता हूँ इमीडिएटली। ठीक है। चलिए, थैंक्स थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गुड डे। एंजॉय। बाय। सी।